اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم بقنات عربک لرننگ اکیڈمی۔ آج ہم لوگ سب سے پہلے جمیل صدقی الذہبی کا قصیدہ ہے جمیل و بثینو، تو اس قصیدے کا MCQs پڑھیں گے۔ تو پہلے ایک بار اور کنفرم ہو جاتے ہیں کہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کلیئر ہے نا وائس اور اسکرین؟ جی سر، آپ بہت کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو دیکھیے یہ جو قصیدہ ہے اس کا MCQ شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر میں ایک بات جان لیں، تاکہ بعد میں اگر آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں اس قصیدے کا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ساری باتیں، ورنہ پریشان رہیں گے۔ یہ شاعر جو ہیں، شاعر کا نام ہے جمیل، ٹھیک ہے۔ یہ بثینو تو یہ جو شعر ہے قصیدۃ جمیل و بثینو، پہلے یہ یاد رکھیں یہ جو قصیدہ ہے شاعر نے کہا ہے کس ٹائم؟ شاعر چونکہ یہ جو ہیں جمیل صدقی الذہبی یہ فلسفر آدمی تھے، یہ فلسفی تھے، اور فلسفی تھے تو فلسفے کی باتیں اور مفکر کی باتیں ہی بہت ہی مطلب بڑی ہوتی ہے، جس کو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو انہوں نے المرأۃ المسلمہ کے بارے یعنی کہ مسلم وومین کے بارے میں کچھ لکھا تھا ایک میگزین میں، تو انہوں نے جو لکھا تھا تو اسی کی وجہ سے ان پہ کوئی نہ کوئی کسی طرح کی مصیبت آئے تھے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو مارنے کی دھمکی دی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں اس کے خلاف کوئی کمپلین کیا گیا ہو، کیس کیا گیا ہو جھوٹی ثبوت بنا کر۔ تو اسی وقت جب وہ اسی مصیبت میں تھے تو اسی مصیبت میں انہوں نے یہ پورا قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کا نام رکھا جمیل و بثینو۔ تو آپ یہاں یاد رکھیں جمیل سے مراد خود یہ شاعر ہیں، کیونکہ ان کا نام کیا تھا؟ جمیل صدقی الذہبی، اور بثین سے مراد ان کی بیوی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ چلیے اموی دور پلٹ کر کے اموی دور چلیں، اموی العصر الاموی، تو العصر الاموی میں کیا ہوا تھا؟ ذرا ایک منٹ رکیں۔ ہاں، العصر الاموی میں کیا ہوا تھا؟ العصر الاموی میں ایک شاعر گزرے ہیں جمیل معمر، ٹھیک ہے۔ ان کی محبوبہ تھی بثینہ، یہ بہت مشہور ہے۔ ان کی محبوبہ تھی کیا؟ بثینہ۔ تو گویا کہ شاعر نے یہاں پہ بثینہ سے مراد اپنی بیوی کو مراد لیا ہے۔ وہ یہاں بثینہ سے مراد وہ بثینہ نہیں ہے جو جمیل بن معمر کی محبوبہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے چیزیں ذہن میں رہیں گے، اس کے بعد اگر آپ یہ ٹیکسٹ پڑھیں تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور کوشچن بھی اسی طرح کے ہیں۔ چلیں، سوال نمبر 1 ہے این ولد جمیل صدقی الذہبی؟ جمیل صدقی الذہبی کہاں پیدا ہوئے؟ سب سے پہلا شعر ہے بغداد، مصر، فلسطین، یمن، بتائیں کہاں پیدا ہوئے یہ؟ بغداد۔ جی، آپشن نمبر 1 جمیل صدقی الذہبی یہ بغداد میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ متى ولد جمیل صدقی الذہبی؟ جمیل صدقی الذہبی کب پیدا ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ 1863 میں جمیل صدقی الذہبی پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اوہو ایک منٹ، اسکرین ویزیبل ہے؟ جی جی سر۔ ٹھیک، اوکے۔ چلیے، سوال نمبر 3 ہے ایوم من، ایک بار مجھے دیکھ لینے تھے، ریکارڈنگ ہو رہی، ہاں ہو رہی۔ سوال نمبر 3 ہے ایوم من الظواہر التالیہ صحیح عن الذہبی؟ ظواہر میں سے بتایا تھا کہ مطلب فینومینا ہوتا ہے، یہاں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے ذہبی کے بارے میں۔ نمبر 1 ہے عین محررا لجریدۃ الزوراء عام 80 و 900 والف، 1980 میں یہ جریدۃ الزوراء کے محرر متعین کیے گئے تھے، یعنی مطلب کاتب، اس میں لکھتے تھے یہ۔ نمبر 2 ہے عین عضوا فی مجلس المعارف، مجلس المعارف کا ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن کونسل، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن کونسل میں عضوا من سے ہوتا ہے ممبر، یاد رکھیے گا، عضوا من سے کیا ہوتا ہے؟ ممبر، ممبر۔ تو ایجوکیشن کونسل میں یہ ممبر بنے تھے 1887 میں۔ نمبر 3 ہے
درس اعلیٰ یدی ابھی ہی، انہوں نے اپنے باپ سے پڑھائی حاصل کی. نمبر 4 ہے کل من الثلاث. تو کون سی بات صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4. جی کیونکہ یہ جرید. جی ہاں آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. یہ سوال نمبر 3 کا کیوں، وجہ یہ ہے کہ تینوں باتیں صحیح ہے. انہوں نے اپنے باپ سے پڑھائی کی تھی، یہ بھی بات صحیح ہے. اور یہ 1887 میں وہ ایجوکیشن کونسل کے ممبر بنے تھے، یہ بھی بات صحیح ہے. اور 1980 میں یہ جریدۃ الزوراء کے محرر بنے تھے، یہ بھی صحیح ہے. اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. سر چلیے 18 سوال ہوگا نا نمبر 19 4. ہوگا جی سر. وہ نیچے میں سر وہ 18 ہوگا یا 19 ہوگا سر؟ 19 سے نا سر، وہاں پہ 19 سے ہے نا. او اچھا ہاں، اور یہ نا یہ 1987 ہوگا یہ. ایک 18 منٹ ہوگا سر، 18 ہوگا سر. ایک منٹ ایک منٹ. کس کے بارے میں بول رہے ہیں آپ؟ 3 نمبر سوال میں جو آپشن 1 ہے نا سر، 1980 ہے نا سر، تو 1880 ہوگا سر. ہاں ہاں صحیح بات ہے. ذرا ایک منٹ رکیے گا. 18 ہوگا وہ. یہ کیونکہ جی 18 ہوگا لیکن یہ جو ہے نا ایک دن مقرر ہوں گے جیسے کہ ذرا یہ 18 ہوگا. 1880 ہوگا یہ. چلیے میں اس کو صحیح کر دوں گا. سوال نمبر 4 ہے ما هي اللغات التي قال الذهبي الشعر فيها. میوٹ کر لیں پلیز. کہ وہ کون کون سی زبان ہے جن زبانوں میں ذہبی نے شعر کہا ہے؟ عربی، فارسی، کل من الاثنین، الہندیہ. تو بتائیں کون کس کس زبان میں انہوں نے شعر کہا ہے؟ آپشن 3 سے. آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. کیونکہ ذہبی نے جو شعر کہا ہے عربی اور پرشین دونوں زبان میں انہوں نے شعر کہا ہے. اس وجہ سے آپشن نمبر 3 ہوگا. من قال عن الذهبي، ذہبی کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ کان معریہ هذا العصری، کہ یہ اس زمانے کے معری ہیں. جیسے ابو الاعلی معری تھے نا عباسی دور میں، یہ فلسفی شاعر تھے. تو ایسے ہی معری کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ اس دور کے معری ہیں، آج کے زمانے کے. تو یہ کس نے کہا؟ عقاد نے کہا، طاووسن نے کہا، مازنی نے یا رافی نے؟ کس نے کہا ہے؟ تو یہ جو ہے طہ حسین نے کہا ہے. طہ حسین نے ذہبی کے بارے میں کہا ہے کہ کان معری هذا العصری، کہ اس زمانے کے معری تھے. تو سوال آ جائے گا من کانا معری هذا العصری. سوال آ جائے گا من کانا معری العصری الحدیث. ٹھیک ہے یہ تو آپ فوراً جواب دیں گے کانا الذهبی، ذهبی. سوال نمبر 6 متى سافر الذهبي الى استنبول. ذهبی ترکی بھی گئے تھے. تو ذهبی استنبول کا سفر کس نے کیا، کب کیا تھا؟ ایٹین نائنٹی میں، 1895، 1896، 1897. تو اس کا صحیح آپشن ہوگا یہ 1890 میں. 96 جی 1896 نہیں ہوگا سر؟ 96 ہاں نہیں نہیں. ایک میں نے تو 1890 میں نے پڑھا ہے. ایک منٹ، آپ نے کہیں دیکھا ہے کیا؟ جی سر. جی بتا. کہاں کس بک میں؟ بک تو نہیں معلوم ہے لیکن پڑھا ہے کہ 1896 میں استنبول گئے. نہیں. ٹھیک ہے سر، اب پڑھائیے. ایک منٹ ایک منٹ. میرے سر جی جی دلیل الاعتبار تنافسی جو ہے اعجاز احمد ہوں غزنوی کا، تو ہاں اس ہاں میں ہاں 1998 دیا ہے. اصل میں یہ ہے نا
یہ استنبول شاید کہ 1 یا 2 بار گئے تھے، کئی بار گئے تھے، مجھے بھی جو یاد آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو میں بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہ فرسٹ بار جو گئے تھے استنبول، لیکن سب سے پہلی بار جو گئے ہیں وہ اسی میں گئے ہیں۔ ایک منٹ، ہاں فرسٹ بار جو گئے تھے، آپ نے 96 سے پڑھا ہے نا؟ جی سر 96 ہاں 96 بھی ہے، میں نے 91 پھر کہاں سے لکھا ہے، ایک منٹ، 92 سافر استنبول عام 96، ٹھیک ہے 96 سے ہی رکھیے، میں نے 91 کہاں سے لکھا ابھی پھر دیکھتا ہوں دوسرے بک میں۔ تو یہ استنبول گئے تھے 1896 میں، ٹھیک ہے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کئی بار گئے ہوں استنبول، 1 سے 2 بار، تو اس وجہ سے 1898 لکھا ہوا ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہے، متى توفی الذهبی، ذهبی کب مرے؟ بتائیں ذهبی کب مرے؟ 1936، ٹھیک ہے، ذهبی کب مرے ہیں؟ 1936۔ اور یہ بتائیں احمد شوقی کب مرے ہیں؟ احمد شوقی کب مرے ہیں؟ 1932 میں احمد شوقی مرے ہیں، اور 1936 میں یہ زمین ستر ذهبی مرے، گویا کہ 4 سال کا فاصلہ ہے۔ چلیے سوال نمبر 8 ہے، جی حافظ 1932 میں۔ ہاں جی احمد شوقی 32 میں ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، آپ لوگ خود پڑھ کے بتائیں گے، صرف میں آپشن پڑھ دوں گا۔ متى قال الذهبي قصیدۃ جمیل و بثینو، ذهبی نے جمیل و بثینو والا قصیدہ کب کہا تھا؟ نمبر 1 ہے قالها الشاعر یخاطب زوجہ، یعنی زوجتہ، شاعر نے یہ قصیدہ کہا ہے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے، اپنی بیوی کو ایڈریس کر کے، یوم اصابتہ المحنۃ، اس دن جب کہ ان کو مصیبت پہنچی، علی اثری، اثری ہے یہ اثری ہوگا، علی اثری ما نشرہ فی المؤید عن المرأة المسلمہ، ٹھیک اس کے بعد ہی جب کہ اس نے مسلم عورت کے بارے میں مؤید میں اپنی ایک تحریر انہوں نے پبلش کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ قصیدہ جو ہے شاعر نے اس وقت کہا ہے جب کہ مؤید میں انہوں نے مسلم وومین کے بارے میں اپنی کوئی تحریر مقالہ نشر کیا، تو اس کو اس کی وجہ سے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو اپنی بیوی کو مخاطب کر کے یہ قصیدہ کہا جمیل بہتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہے قالها الشاعر یخاطب زوجہ یوم اصابتہ المحنۃ علی اثر ما نشرہ فی الاحرام، احرام میں جو کچھ شائع کیا تھا اس کی وجہ سے اس پہ مصیبت آئی تھی، تو انہوں نے یہ قصیدہ کہا۔ تیسرا ہے کل من الاثنین۔ چوتھا ہے قالها الشاعر یخاطب زوجہ یوم اصابتہ المحنۃ علی اثر ما نشرہ فی المؤید عن الخلافۃ الاسلامیہ، تو کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 1 آپشن نمبر 1 صحیح ہے جی۔ آپشن 3 نہیں، آپشن 3 صحیح نہیں ہوگا، آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ بات یہ ہے، ہاں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ قصیدہ کہا اس وقت کہا تھا جب کہ مؤید میں مسلم وومین کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا تھا، تو اس لکھنے کے بعد ہی لوگوں کی طرف سے، میں بھی ہو سکتا ہو چونکہ یہ فلسفی تھے تو انہوں نے مسلم وومین کی آزادی کی، اس طرح کی باتیں کی ہوں گی انہوں نے، تو اسی وجہ سے ان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا دوسرے لوگوں کی طرف سے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے لکھا جمیل و بثینہ، جمیل سے مراد وہ خود لے رہے ہیں اور بثینہ سے مراد ان کی بیوی۔ اور آپشن نمبر 2 صحیح نہیں ہوگا کیونکہ احرام میں لکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس وجہ آپشن 3 بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپشن 4 بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اسلامی خلافت کے بارے میں نہیں لکھا تھا اس آرٹیکل میں، بلکہ انہوں نے المرأۃ المسلمہ کے بارے میں لکھا تھا۔ چلیے سوال نمبر 9 ہے ما معنی الحمام، حمام، حمام فی البیت التالی، حمام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نیچے دے ہوئے شعر میں، شعر ہے ابوثین ادنى العدو حمامی
बिमुसद्दसिन युज़कीही और बिहुसामी। चलिए पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर इसका ऑप्शन आप लोग खुद जवाब देंगे। अब वसैनु, आपको पता है ये शेर उन्होंने अपनी बीवी को मुखातब करके लिखा था। तो अब वसैनु तो अपनी बीवी को कह रहा है कि ए वसैना, अब वसैनु ए वसैना, इन अदना अदुव्वी हमामी। अदना मीन से होता है क्या, कम से कम तर, हाँ सबसे छोटा, ठीक है। अदू मीन से दुश्मन, हमाम मीन से होता है मौत, हमाम मीन से मौत। तो इन अदना अदुव्वी हमामी कि मेरा सबसे छोटा दुश्मन मेरी मौत है। बिमुसद्दसिन, मुसद्दस मीन से होता है पिस्तौल, ठीक है, पिस्तौल। और अदका युद्ध की इदकान का मतलब क्या होगा, अदका अलमुसद्दस का माना होगा पिस्तौल चलाना, ठीक है। अदका अलमुसद्दस माना होगा पिस्तौल चलाना, ठीक है। तो बिमुसद्दस मेरा सबसे कमतर सब दुश्मन मेरी मौत है। बिमुसद्दसिन उस पिस्तौल के जरिया युद्ध की ही जो उसे चलाए, और बेहुसामी या तलवार के जरिया। इस शेर का पूरा मतलब क्या है, इस शेर का सीधा सा मतलब यह है कि ये अपनी बीवी को मुखातब करते हुए कह रहे हैं कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मेरा सबसे कमतर जो दुश्मन है वो मौत है। वो चाहे वो मौत मुझे तलवार से आए, तलवार से कोई मुझे कत्ल कर दे, या पिस्तौल से गोली मार दे, तो इस वजह से मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मतलब ये कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। तो अब यहाँ बताएं, हमाम जो है लफ्ज़ हमाम, तो हमाम इनसे क्या होता है, अलमौत, हाँ मनिया, मनिया। बताएं कौन सा सही होगा। कुल्लु मिनल इस्नाइन। जी बिल्कुल सही, क्योंकि हिमाम का मतलब मौत होता है, ठीक है, तो अलमौत सही है। और ये एक वर्ड है अलमुनिया। जी सुनिए सुनिए, क्या बोल रहे हैं, देखिए। और दूसरा जो वर्ड है, ये वर्ड है अलमुनिया, ठीक है। अलमुनिया मीन से भी मौत होता है। यही एक वर्ड होता है अलमनिया, मनिया मीन से होता है आरजू। मनिया अगर आ जाए तो माना हो जाता है क्या, आरजू, लेकिन अलमुनिया हो तो उसका माना होता है मौत। तो अलमुनिया मीन से मौत, अलमौत मीन से मौत, हमा मीन से मौत। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। आगे क्वेश्चन क्या है, आज जो है ये लोग आ रहे हैं, एक मिनट एक्सेप्ट करने दीजिए। सवाल नंबर 10 है, मैं यकसिदु बिबुसैना फिल बैति ताली, कि बुसैना से कौन मुराद ले रहे हैं शायर नीचे दिए हुए शेर में। नंबर 1 है, अब हुसैन इन्ना अदना अदुव्वी हमामी बिमुसद्दसिन युज़कीही और बिहुसामी। तो बताएं बुसैना से कौन मुराद ले रहे हैं। 2 नंबर होगा सर, ज़ौज़तुल शायर। जी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ज़ौज़तुल शायर मुराद है बुसैना से। चलिए सवाल नंबर 11 है, मा माना मुसद्दस, मुसद्दस का क्या माना होता है नीचे दिए हुए शेर में। अब हुसैन इन्ना अदना अदुव्वी हमामी, कौन सा होगा। सलाहुन नारियुन दुसाक़ियतिन यक़दिफ़ु बिही रसास, ये सलाहुन एक विपन होता है, नारियुन उगलने वाला होता है, जो साक़ियतिन यक और उसके ज़रिया वो गोली को उगलता है, इस पिस्तौल बोलते हैं इसको। और दूसरा है अलबंदूकिया। तो क्या होगा बताएं, मुसद्दस में से क्या होगा। कुल्लु बिन सलासा 3 कुल्लु मिनल इस्नैन, वो सलास हो गया है सर। हाँ कुल्लु मिनल इस्नैन होगा। असल में बात ये है ना, ये 2-3 लास्ट के 2-3 जो हैं जल्दी जल्दी बाजी में बनाए हैं अभी फ़िलहाल, जिसकी वजह से रह गई है कुछ गलतियाँ। तो कुल्लु मिनल इस्नैन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। सवाल नंबर 12 है, मा माना हुसाम फिल बैति ताली, हुसाम का क्या माना होगा बताएं। निशान का मतलब साइफ और रमा। जी ऑप्शन नंबर 1 से होगा। हुसाम मीन से सैफ होता है, हुसाम मीन से सैफ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हुसाम मीन से सैफ होता है। चलिए आगे वाला शेर है, अब वफ़ैनु इन औदा जमील के खाबितन
बिदमिन लहु उहरिका फौका रगामिन। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि माँ माना रगाम, रगाम इनसे क्या होता है। चलिए पहले उसका माना बाद में पढ़ेंगे, पहले शेर हल करते हैं। शेर जो हल करते हैं, शेर हल करने से पहले आप इतना मतलब समझ जाइए। पहले इस शेर में शायर अपनी बीवी से कह रहे हैं कि मेरी बीवी ये जान लो कि अगर तुम्हारा जमील यानी तुम्हारा शायर अगर वो मर गया किसी खून में, उसका खून बहा दिया गया ज़मीन पर, तो इससे तुम घबराना नहीं बल्कि तुम हिम्मत बांध के रखना। वो अगले शेर में हिम्मत बांध के रखना, तजल्लदी का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इतनी सी बातें हैं, तो अब शेर पढ़िए तो समझ में आएगा। अब बुसैनु, ए बुसैना, अपनी बीवी से कह रहा इन औदा। देखिए ये औदा में से क्या होता है, औदा यूदी का मतलब होता है हलाका, बाबे फाल से। ठीक है, औदा यूदी में से होता है हलाका, मतलब हलाक होना, मरना। जमीलु का, तुम्हारा जमील, जमीलु का में से क्या मुराद है, यानी शायर। तुम्हारा जमील कौन है, मतलब शायर। इन औदा जमीलु का, अगर तुम्हारा जमील, ए बुसैना अगर तुम्हारा जमील हलाक हो जाए, खाबितन बिदमिन। देखिए खबता मिन से क्या होता है, खबता मिन से होता है अस्सैरु अला गैरि हुदन, मतलब ये है कि रास्ता ना मालूम हो उसी पे चल पड़ना। जब इंसान को रास्ता नहीं मालूम होता, चल पड़ता है, तो क्या होता है, वो पूरा घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बस पूरा घूमता रहता है वो। तो वही है खाबितन। बिदमिन, दम से होता है खून। उहरिका, अहरका में से क्या होता है, बहाना। अहरका युहरिकु इहराक, बाबी फाल से बहाना, और ये जो है फिल मजहूल है, बहा दिया, बहा दिया गया। बिदमिन उहरिका, बहा दिया गया। रगाम में से होता है तुराब, रगाम में से क्या होता है, तुराब। ये वर्ड याद रखिएगा, एक नया वर्ड है रगाम, तुराब। अब देखिए, अब बुसैनु इन औदा जमीलु के खातिबन, ए बुसैना अगर तुम्हारा जमील यानी तुम्हारा शौहर शायर अगर वो हलाक हो गया किसी खून में लथपथ हो करके, बेदमिन लहू उहरी का, जो कि और वो खून बहाया गया फौका रुगामी, मिट्टी पर। तो इतना शेर का मतलब हुआ। आगे शेर में यह है ला तसब्बरी वला तजल्लदी, तो उस वक्त तुम सब्र करना और घबराना मत। ये आगे शेर है। तो चलिए इसमें ये बताएं रगाम का मतलब क्या होता है। इंतकाम, तुराब, कुल्लु मिन हुसैन, अद्दम। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रगाम का मतलब होता है तुराब। सवाल नंबर 14 आप लोग खुद बताएंगे, मैंने बताऊंगा। माँ माना औदा फिल बैत ताली, औदा का क्या माना होता है। हुसैन इन औदा जमील का खातिबन बिदमिन, बताएं जी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हलाका। चलिए सवाल नंबर 15 है, मन युरादु बी जमील का फिल बैत ताली, कि जमील का से कौन मुराद है नीचे दिए शेर में। जमील बिन मामर, जमील सिद्दीकी ज़हाबी, मजनून, कुसैर, उज़्ज़ा। जी जमील सिद्दीकी ज़हाबी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जमील को से मुराद जमील सिद्दीकी ज़हाबी है, ना कि जमील बिन मामर, ना कि मजनून, ना कुसैर, उज़्ज़ा। और ये कुसैर कौन थे, कुसैर जो है ना ये भी इसी टाइप के थे, जमील टाइप के। उनकी महबूबा थी अज़्ज़ा। जैसे उन्होंने एक शेर कहा है, मा कुन्तु अदरी क़ब्ल अज़्ज़ा मल बुका वला मुजाअतिल क़ल्बि हत्ता तवल्लती। मतलब ये कि कुसैर ने कहा है कि मैं अज़्ज़ा से पहले मैं नहीं जानता था कि रोना धोना क्या होता है। मा कुन्तु अदरी क़ब्ल अज़्ज़ा मल बुका वला मुजाअतिल क़ल्बि, और ना मैं ये जानता था कि दिल का दर्द क्या है। जब वो अज़्ज़ा चली गई तब पता चला कि रोना धोना क्या है और दिल का दर्द क्या है। चलिए सवाल नंबर 16 है, मन क़ालल बैत ताली, नीचे दिए हुए शेर किसने कहा। ला तजज़ई या बुसैनु इन्नी वासिक़ुन बिबराअती व अवाक़िबिल अय्यामी। चलिए पहले शेर समझते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये शेर कहा है जमील सिद्दीकी ज़हाबी ने। और ये याद रखिएगा क्योंकि ये शेर जो है ना इस पूरे कसीदा का एक इम्पोर्टेंट शेर है, जिसमें पूरा ये इंसिडेंट का एक खुलासा इसमें बयान किया गया है। तो खुलासा बयान करने से, इस शेर पढ़ने से पहले मतलब समझ आइए। मतलब ये है कि मुझे लगता है कि जमील सिद्दीकी ज़हाबी पे कोई मुकदमा हो गया होगा, केस हो गया होगा। तो इसी वजह से उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो तुम घबराना मत, मैं अपनी
براعت کا، یعنی کہ اپنے بے گناہی پہ مجھے یقین ہے، اور ان قریب زمانہ بتا دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو شاعر اپنی بیوی سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تو اب دیکھیے، لا تجزعی یا بثین انی واثق ببراءتی وعواقب الایام۔ جزع من سے ہوتا ہے کیا؟ گھبرانا، تو فعل نہیں ہے، لا تجزعی مت گھبرانا، یا بثین اے بثینا تم مت گھبرانا، انی واثق۔ واثق من سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وثق یثق من سے ہوتا ہے کہ بھروسہ رکھنا، بھروسہ کرنا، اور وثق با صلے کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تو اسے اس میں فاعل ہے واثق ببراءتی، مجھے بھروسہ ہے اپنی براعت یعنی بے گناہی پر، ٹھیک ہے، مجھے بھروسہ ہے، کانفیڈینس اپنے بے گناہی پر۔ وہ عواقب الایام، عاقبتن کی جمع ہوتی ہے عواقب، جس کا معنی ہوتا ہے رزلٹ، نتیجہ، ایام ان سے زندگی، زمانہ، اور زمانے کے نتیجے پر مجھے بھروسہ ہے، مطلب یہ ہے کہ عنقریب زمانہ بتا دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اصل کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 17 ہے، ما معنی ینمونہا فی البیت التالی؟ ٹھیک ہے، ینمونہا کا کیا مطلب ہے نیچے دیے ہوئے شعر میں، والصبر اجدر ان علمت نکبۃ بکریمۃ ینمونہا لکرام۔ تو یہاں ینمونہا کا کیا مطلب ہے؟ چلے بتائیں پہلے آپ لوگ، پھر ہم شعر کا ترجمہ کریں گے۔ ینمونہا کا کیا مطلب ہے؟ نسب الیہ، رفع، خفض، اکرم۔ نصب اعلان جی ویری گڈ، نسب الیہا اس کا معنی ہے، ینمونہا کا معنی ہے نسب الیہ۔ اب یہ کیسے؟ آگے شعر پڑھیے تو انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گا۔ اس شعر کا مطلب پہلے سمجھے، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ایک شریف عورت ہو، ٹھیک ہے، اور تم ایک شریف عورت ہو، اسی وجہ سے اگر مجھ پہ مصیبت آتی ہے، میں مر جاتا ہوں، مجھے کچھ ہو جاتا ہے، تو ایک شریف عورت کے لیے مناسب یہ ہے، اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اور تم ایسے شریف عورت ہو کہ لوگ تمہیں شریف لوگوں میں شمار کرتے ہیں، شریف لوگوں کی طرف تمہیں منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم شریف ہو، تو اس وجہ سے شریف عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا۔ اب شعر دیکھیے، وہ صبر اجدر، صبر میں سے جانتے ہیں صبر، اجدر کیا ہے؟ دیکھیے جدورا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بی ایبل، جدورا یجدرو جدارتن، ٹو بی ایبل، کسی چیز کے لائق ہونا، اسی سے اس میں تفضیل ہے اجدرو، اجدرو، اور صبر یعنی کہ صبر زیادہ لائق ہے، بھی کریمت ہے، اجدرو کا تعلق کریمت ان سے ہے، اتنا سمجھئیے پہلے، وہ صبر اجدرو بھی کریمت۔ چلیے ہم لوگ اس کو نثر کر کے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا ٹھیک سے۔ وہ صبر اجدرو، اجدرو کے بعد اب یہاں آئے بھی کریمت، اور صبر زیادہ مناسب ہے ایسی شریف عورت کے، ٹھیک ہے، ینمونہا لکرامی، جس کو لوگ، انما ینمی، انمان کا مطلب ہوتا ہے نسب الیہ، یعنی کسی چیز کی طرف منسوب کرنا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں ہوں تو مجھے لوگ منسوب کر دیں کہ یہ فلاں یونیورسٹی سے ہے، فلاں انسان سے ہے، تو وہ ہے ینمونہا، جس کو کہ لوگ منسوب کرتے ہیں لکرامن، بڑے اور شریف لوگوں سے، یعنی شریف لوگوں سے ان کو لوگ منسوب کرتے ہیں۔ تو کیا صبر زیادہ مناسب ہے اس شریف عورت کے لیے جس کو لوگ منسوب کرتے ہیں شریف لوگوں سے، مطلب یہ کہ وہ شریف عورت ہے، اور یہ کب مناسب ہے؟ ان علمت نکبتن، جب مصیبت آ جائے۔ دیکھیے علما یلم علمام، علما یلم علمام باب افعال سے، جس کا مطلب ہوتا ہے عطا، اور نکبتن ان سے مصیبت، کہ اگر مصیبت آ جائے تو صبر زیادہ لائق ہے اس شریف عورت کے جس کو کہ لوگ منسوب کرتے ہیں شریف لوگوں کی طرف۔ تو شعر سمجھ میں آیا؟ یہ بتائیں، چونکہ شعر تھوڑا سا وہ ہے، ادھر ادھر ورڈ ہے، بتائیں شعر کلیئر ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو پھر اس کو بتاؤں انشاءاللہ بڑھیا سے۔ ایک بار اور ترجمہ کیجیے سر۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ جائیے یہاں پہ، پھر بڑھیا سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ان علمت نکبتن ہے نا، ان علمت نکبتن، آپ اس کو یہاں سے حذف کر کے ادھر لائیں، سب سے لاسٹ میں لائیں، ان علمت نکبتن، ٹھیک ہے۔
अब यहाँ से इन अलम्मत नकबतुन मिटा दीजिए आप। अब देखिए वस्सब्रु अजदरु बिकरीमतिन युनमुनहा इन अलम्मत नकबतुन, और सब्र ज़्यादा मुनासिब है, अजदरु में से क्या ज़्यादा मुनासिब है, बिकरीमतिन उस शरीफ औरत के लिए, युनमुनहा लिकरामी जिसको कि लोग मंसूब करते हैं शरीफ लोगों की तरफ। मतलब ये कि उस शरीफ औरत के लिए सब्र ज़्यादा अच्छा है कि जिसको लोग कहते हैं कि ये शरीफ औरत है और इनका जो नसब है, इनका जो बैकग्राउंड है वो शरीफ लोगों से है कि इनका बाप शरीफ है, इनका शौहर शरीफ है, इनका भाई शरीफ, इस तरह इसका मतलब ये हुआ। तो सब्र कब मुनासिब है उस शरीफ औरत के लिए, इन अलम्मत नकबतुन जब मुसीबत आ जाए। अलम्मा में से क्या होता है, अलम्मा युलिमू का मतलब होता है अता, ठीक है, अता याती आना, ठीक है, हदसा यहदुसु। अलम्मा युलिमू का मतलब होता है अता याती आना। नकबतुन इनसे होता है मुसीबतुन, कि अगर मुसीबत आ जाए तो सब्र ज़्यादा मुनासिब है उस शरीफ औरत के लिए जिसको कि लोग मंसूब करते हैं शरीफ लोगों की तरफ। तो अब ये शेर जो है, इस शेर में शायर गोया कि अपनी बीवी को हिम्मत दे रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ अब? जी सर। ठीक है। सवाल नंबर 18 है, मा माना नकबतुन फिल बतिताली, नकबतुन का क्या माना है बताएं आप लोग। मुसीबत। मुसीबत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों? ये नकबतुन का माना होता है मुसीबत, और नकबतुन ही का के लिए एक वर्ड यूज होता है कारिसतुन, नकबतुन ही के लिए वर्ड होता है फाजिअतुन, नकबतुन ही के लिए वर्ड होता है मुसीबतुन। गोया के चारों का एक ही नाम, एक ही माना है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए सवाल नंबर 19 है, आप लोग खुद बताएंगे इसको कि मादा यक़सिदु शायर बिल बैति ताली, शायर नीचे दे हुए शेर से क्या मुराद लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं। वस्सब्रु अजदरु इन अलम्मत नकबतुन बिकरीमतिन युनमुनहा लिकरामी मिन शियमिल करामा अस्सब्रु इंदल मुसीबा। नंबर 1 है कि करामत, शीमतुन जमा शियम से होता है सिफातुन, खुसूसियात। शराफत की खुसूसियात ये है कि अस्सब्रु, सब्र किया जाए, इंदल मुसीबा, मुसीबत के वक्त। नंबर 2 है लैसा मिन शियमी अल करामती अस्सब्रु इंदल मुसीबा, कि करामत की, शराफत की खुसूसियत ये नहीं है कि मुसीबत के वक्त सब्र किया जाए। नंबर 3 है मिन शियमिल करामती अल बुकाउ वल जज़उ इंदल मुसीबा, शराफत की खुसूसियत ये है कि रोया जाए और घबराया जाए मुसीबत के वक्त। ऑप्शन नंबर 4 है कुल्लु मिन सलास। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक नंबर पर जी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों? वजह है कि शेर से शायरी कहना चाहते हैं कि तुम चूंकि शरीफ हो, तो शरीफ इंसान की खुसूसियत यह है कि मुसीबत के वक्त सब्र किया जाए, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और 2 सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, तुम्हें ये कहा जा रहा है कि शराफत की ये खुसूसियत है कि मुसीबत के वक्त सब्र न किया जाए, इस वजह से ये गलत है। और ये है 3 भी गलत है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि शराफत की खुसूसियत है कि मुसीबत के वक्त रोया जाए, हालांकि रोना नहीं है, शेर में कह रहे हैं कि रोना नहीं है बल्कि सब्र करना है। ये क्लियर हुआ। चलिए एक शेर है उसफुरुल जन्ना अब्दुर्रहमान शकरी का, और यहाँ पे ये समझाएं कि उसफुर में से क्या होता है। उसफुर में से होता है गौरैया, परिंदा, ठीक है। अल जन्ना में से होता है जन्नत, ठीक है। उसफुर में से क्या होता है गौरैया, अल जन्ना में से जन्नत। अब इस पूरे कसीदे का जो वो है थीम है, सीमा है, अरबी में बोलते हैं थीम को सीमतुन। पूरी थीम है वो ये है कि शायर इसमें बता रहे हैं शायरी के बारे में कि व्हाट इज़ शायरी, व्हाट इज़ पोएट्री, कि शायरी जो होती क्या है। तो उस शायरी को बताने के लिए इन्होंने एक रमज़ इस्तेमाल किया है, सिंबल इस्तेमाल किया है, ठीक है। वो सिंबल क्या है? वो सिंबल है जन्नत का परिंदा। उस जन्नत को परिंदे को मुखातब करके शायर बता रहे हैं कि शायरी क्या होती है। शायरी दिल की आवाज़ होती है, दिल की धड़कन होती है,
سچے اور ٹرو ایموشنز ہوتے ہیں. تو یہ پوری چیزیں اس قصیدے میں ہے. تو چلیے ایم سی کیوز پڑھتے ہیں اب. اور یہ سور الجنہ کس نے لکھا ہے؟ عبدالرحمن شکری نے لکھا ہے. چلیے ہم سے کچھ پڑھیں گے تو اور ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. سوال نمبر 1 ہے انشأ مدرسۃ الدیوانی ثلاثۃ ادباء ومنهم كل کہ من مدرسۃ ثلاثة الدیوان کو جی كل من ثلاثة جی بالکل صحیح ہوگا. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو سوال نمبر 1 کا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سوال ہے کہ مدرسۃ الدیوان کو 3 ادباء نے اسٹیبلش کیا، یعنی کہ اس کو قائم کیا. تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ عبدالرحمن شکری بھی ہیں، عقاد بھی ہے، ابراہیم عبدالقادر مازنی بھی. اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. سوال نمبر 2 ہے این ولد عبدالرحمن شکری. عبدالرحمن شکری کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 1 ہے بورس ببورس سعید احدى مدن مصر. مصر کی ایک سٹی ہے بورس سعید، وہیں پیدا ہوئے. لبنان، سوریہ، عراق. کہاں پیدا ہوئے بتائیں؟ اور فورت سعید سعيد سلمان فورت سے. جی سعيد بالکل. جی 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 آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا سوال نمبر 2 کا. سوال نمبر 3 ہے متى ولد عبدالرحمن شکری. عبدالرحمن شکری کب پیدا ہوئے بتائیں؟ آپشن 2 6 آپشن 2 سر. 1896. 1886 آپشن 2 سر. جی آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. 1886 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اس وجہ سوال نمبر 3 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. ہاں چلیے سوال نمبر 4 ہے لماذا تم فصل عبدالرحمن شکری من کلیت الحقوق. کلیت الحقوق میں سے کیا ہوتا ہے؟ لاء کالج. تو کیوں عبدالرحمن شکری کو لاء کالج سے نکال دیا گیا تھا؟ فصل فصل یقصد فصلن کا مطلب ہوتا ہے کہ نکال دینا. ٹھیک ہے. تو عبدالرحمن شکری لاء کالج میں تھے تو ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا. کیوں نکال دیا گیا تھا؟ نمبر 1 ہے بسبب الاساءۃ الی الاستاذ. الاساءۃ الی الاستاذ کا مطلب ہوتا ہے بے ادبی کرنا. ٹھیک ہے. استاذ کی بے ادبی کی وجہ سے. نمبر 2 ہے بسبب التوغل فی المظاہرات لاعلان سخط المصریین علی الاحتلال البرطانی. توغل فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جانا، داخل ہونا، گیٹ ان. ٹھیک ہے. بلکہ گیٹ ان تو تھوڑا سا اوپر ہی ہوگا. توغل میں ہوتا ہے پورا اندر چلا جانا. نمبر 1 بسبب التوغل فی المظاہرات. مظاہرات میں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پروٹیسٹ. کہ ان پروٹیسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے اعلان سختی المصریین، جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے مصریین کے، مصری ایجپشین کے ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے علی الاحتلال البریطانی، برٹینین آکوپیشن کے خلاف. یعنی کہ برٹین نے، انگریزوں نے مصر پہ جب آکوپائی کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت مصریین نے اپنی ناراضگی جتانے کے لیے انہوں نے ایک احتجاج رکھا تھا، پروٹیسٹ رکھا تھا. تو اسی پروٹیسٹ میں یہ شریک ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے ان کو لاء کالج سے ان کو ہٹا دیا گیا، اخراج کر دیا گیا. نمبر 3 ہے لأنه لم يستطع أن يواصل التدريس في الكلية بغباءته. کیونکہ وہ لم یواصل تدریس یعنی کہ لم یواصل الدرس ہوگا التعلم، کہ وہ مسلسل نہیں پڑھائی جاری رکھ سکے کلیہ میں بغباءته، اپنی کند ذہنی کی وجہ سے. یعنی کہ مطلب ان کا ذہن ان کا ٹھیک نہیں تھا، بہت کن ذہن تھے وہ. نمبر 3 ہے لأنه لم يستطع أن يدفع الرسوم بسبب المشكلة المالية. الرسوم میں سے کیا ہوتا ہے؟ الرسوم میں سے ہوتا ہے فیس. ٹھیک ہے. دفع میں سے ادا کرنا، کیونکہ وہ فیس ادا نہیں کر سکے مالی مشکل کی وجہ سے. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ 2 تقریبا. جی بالکل. آپشن سوال نمبر 4 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا، کیونکہ برٹین جو آکوپیشن ہوا تھا اس کے خلاف مصرین جب اپنی ناراضگی جتا رہے تھے تو اسی پروٹیسٹ میں شریک ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا لاء کالج سے. ہاں چلیے سوال نمبر 5 ہے متى تخرج عبدالرحمن شکری من مدرسۃ المعلمین. عبدالرحمن شکری
मदरसत मुअल्लिमीन से कब वो फारिग हुए, यानी कब उन्होंने इसमें अपना कोर्स मुकम्मल किया, तो बताएं 5 का कौन सा सही होगा। वन सर। जी 1909 में, 1909 में, 1909 में ये मदरसतुल मुअल्लिमीन से फारिग हुए थे अब्दुर्रहमान शकरी। और एक बात याद रखें कि मदरसतुल मुअल्लिमीन ही में अब्दुर्रहमान शकरी की मुलाकात हुई थी इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी से, फिर वहीं से कोई फ़िक्रा बना, थॉट बना और मदरसतुल दीवान वगैरह का आगे चल करके इस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलिए सवाल नंबर 6 है, इलाही जामिअतुन वफ़द शकरी फ़ी बहथतिन इल्मिया, इल्मी वफ़द में, इल्मी डेलीगेशन में कौन सा जामिया शकरी गए थे अब्दुर्रहमान शकरी। देखिए वफ़ादा में से क्या होता है, वफ़ादा आना मतलब एक देश से दूसरे देश जाना, वफ़ादा। तो किस जामिया में वो गए थे, इल्मी डेलीगेशन में, इल्मी वफ़द में, किस जामिया में उन्होंने एडमिशन लिया था। जामिया तो शेफील्ड बेंजतरा में, जामिया ऑक्सफोर्ड में, जामिया कैम्ब्रिज में, जामिया कैलिफोर्निया में, तो बताएं कौन सा सही होगा। जामिया तो ऑप्शन शफील। वन सर। ऑप्शन वन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जामिया तो शेफील्ड बेंजतरा इंग्लैंड में है, जामिया तो शेफील्ड, तो उसी में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया ये सब में नहीं लिया था, मतलब सबसे हट के। सवाल नंबर 7 है, मता आद अब्दुर्रहमान शकरी मिन इंजलतरा फी बहथा इल्मिया, अब्दुर्रहमान शकरी कब लौटे थे वहां से, इंग्लैंड से, वो पढ़ाई करके। 12 जी ऑप्शन टू। 1912 में, जी 1912 में वो पढ़ के लौटे थे इंग्लैंड से। जी चलिए सवाल नंबर 8 है, अन तारफ शकरी वल माज़नी, शकरी और माज़नी का एक दूसरे से पहचान, जान पहचान और इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, फी मदरसतुल मुअल्लिमीन में या फी नादी नदवी। नादी नदवी में से होगा लिटरेरी क्लब, नादी में से क्या होता है, क्लब, अदबी में से लिटरेरी। ठीक है, फी जमिया अदबिया बिंजतरा, इंग्लैंड में किसी अदबी नशिस्त में, या फी मतअमिन बि मिस्र, या मिस्र के किसी रेस्टोरेंट में। बताएं कौन सा सही है। मदरसतुल ऑप्शन वन। मुअल्लिमीन। जी ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि शकरी माज़नी की मुलाकात मदरसतुल मुअल्लिमीन में हुई थी। सवाल नंबर 9 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मता अज़दर अब्दुर्रहमान शकरी दीवान हो अल-अव्वल, अब्दुर्रहमान शकरी ने अपना सबसे पहला दीवान कब शाये किया था। तो नंबर 1 है 1907 में, नंबर 2 है 1906 में, थ्री सर। 1909। बताएं। 09 ऑप्शन थ्री। 90 पे, 9 पे। जी 1909 में इन्होंने अपना पहला दीवान शाये किया था अंदल फज्र के नाम से, तो इस वजह से जौल ऑप्शन फज्र। नंबर 3 सही है। जी जौल फज्र। ज़ाउल फज्र, मुझे सर। भी इसमें थोड़ा सा वो था, कंफ्यूजन था। इसका अंदल फज्र नहीं, ज़ाउल फज्र है इनका वो दीवान। ठीक है, मैं इसको एक बार और देख के बता दूंगा। आप आर यू श्योर, आपने किसी बुक में देखा है। 19 हाँ अंदल सर, हाँ फजर सर, दिया है। हमको आपकी तरफ से मालूम है। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें याद रखें कि इन्होंने ये तो कंफर्म है कि 1909 यानी कि 1909 में इन्होंने सबसे पहला दीवान शाये किया था। उस दीवान का नाम यहाँ पे इंदल फज्र लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डाउट है मुझे, वो ज़ौल फज्र है शायद, इस तरह से। चलिए मैं दीवान हाँ सर, ठीक है। देख लूंगा, बता दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को अभी पढ़े हुए हों, किसी बुक से ऑथेंटिक, तो श्योर है सर, बता सकते। श्योर श्योर सर। ठीक, ठीक है, ओके, ज़ौल फज्र। जौल फज्र है। ठीक है, ठीक है, ज़ौल फज्र। ये जो दीवान है, दीवान का नाम है ज़ौल फज्र, फज्र की रोशनी। सवाल नंबर 10 है, मन शायर अल्लज़ी आश तूल हयातिही आज़िबन, आज़िबन में से होता है कुंवारा, कि वो कौन से शायर हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी कुंवारे रहे। नंबर 1 अब्दुर्रहमान शकरी, अलक़ात कुल्लु मिन हुस्न, तो बताएं। इसमें ऑप्शन थ्री सर। 3 ऑप्शन थ्री। 3 सर। 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 3
ऑप्शन 3। वजह यह है कि अब्दुर्रहमान शकरी भी कुंवारे रहे थे, अक्काद भी कुंवारे रहे थे। इस ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मता तूफ़ी अब्दुर्रहमान शकरी, अब्दुर्रहमान शकरी की वफात कब हुई? होगा सर 1958 1958 में अब्दुर्रहमान शकरी की वफात हुई थी। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा सवाल नंबर 11 का। मता असदर अल अक्काद वल माज़नी किताबहुमा अद-दीवान। 1941 वन कौन सा? देखिए, अक्काद और माज़नी ने दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी थी अद-दीवान। अद-दीवान थी क्या? अद-दीवान में जो है ये दिरासात था, दिरासात नक़दिया था, शेर के बारे में, ठीक है, अदब के बारे में, लेकिन ज़्यादातर शेर के बारे में। तो वो अक्काद और माज़नी दोनों ने निकाला था। तो वो उन्होंने कब निकाला था ये बुक? 31 पे 31 पे ना। 1931 में। 1931 में अक्काद और माज़नी ने अद-दीवान जो निकाला था 1931 में निकाला था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और आपको सवाल में अगर डायरेक्टली पूछा जाए सवाल कि मन असदरा अद-दीवान, कि दीवान किसने निकाला था, किसकी बुक है, तो आपको बताना होगा वो अक्काद और माज़नी दोनों ने मिल करके लिखा था। चलिए सवाल नंबर 13 है। असदरा अब्दुर्रहमान शकरी इद्दत दवावीन, अब्दुर्रहमान शकरी ने कई दीवान लिखे। वो मिनहा, उनमें से कौन कौन से दीवान है? अज़हारुल खरीफ, अनाशीदुस सबा, ज़हरुर रबी, कुल्लु मिन सलास। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अब्दुर्रहमान शकरी ने कई दीवान लिखे थे, उनमें से कौन सा दीवान इनका है? कुल्लु मिन सलास। जी, अब्दुर्रहमान शकरी की तीनों दीवान है। अज़हारुल खरीफ भी है, अनाशीदुस सबा भी, ज़हरुर रबी। नाम कितना मतलब प्यारा है। अज़हारुल खरीफ, एक होता है रबी, रबी बोलते हैं बहार को, खरीफ बोलते हैं खिज़ां को। खिज़ां बोलते हैं उस मौसम को जबकि दरख्त वगैरह सूखने लगते, दरख्त वगैरह के पत्ते झड़ने लगते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वो मतलब तनाक़ुज़ वाला नाम रखा है कि मौसम खिज़ां के फूल, अनाशिद उस सबा, सुबह की तरानी, और ज़हरुर रबी, रबी में से होता है मौसम वो बहार, यानी कि जिस वक्त के पत्ते वगैरह खूब हरे होते हैं, मौसम बहार के फूल। जी माज़नी और अक्काद दीवान लिखा है कितने साल में है? आज सुनिए ना, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, थोड़ा सा वो नेटवर्क में जाके बोलें। तो बोल रहा हूँ कि अक्काद और माज़नी जो दीवान लिखा है वो कौन सा में लिखा है? मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा करें, हो सके तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं देख लेता हूँ, या नहीं तो व्हाट्सएप पे लिख दें, मैं सुन नहीं पा रहा जो हूँ। दीवान लिखा है ना अक्काद और माज़नी ना, हाँ, दीवान। टुकड़ी में कोई साल में लिखा है, कौन से साल में? आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है चैट बॉक्स में लिख दें, या नहीं तो व्हाट्सएप में देख लेते हैं अभी। असल आपके लग रहा है कि आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आवाज़ कट कट के आ रही है। किसी दूसरे को सुना जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी को दूसरे को सुना जा रहा है क्लियर तो बोलें, किसी और को अगर सुना जा रहा हो तो। अक्काद और माज़नी ने जो दीवान लिखा है कौन साल में लिखा है? अच्छा, दीवान, अच्छा, कब लिखा है उन्होंने? हाँ सर वही बोल रहा हूँ। तो ये मता असदर अल अक्काद वल माज़नी किताबहुमा दीवान, दीवान इन्होंने कब मतलब शाये किया? तो वो 1931 में शाये किया था। तो ये है कि अब लिखने में हो सकता है उससे पहले जितने साल लगे हों। सर 21 होगा शायद, 1921 1921 21 होगा 19 से 19 नहीं, ये 1931 ही है इसका, सर 19 से क्योंकि मुझे 21 होगा सर। हाँ, तो 1931 दीवान में मदरसतुद दीवान है, मदरसतुद दीवान।
कब? 21 में। 21, हाँ उस वक्त, हाँ मदरसतुल दीवान उस वक्त कायम किया गया था 21 में। जी, ये 1931 है। और इसमें कुछ ये नहीं मुझे याद आ रहा है, मैंने भी पीछे पढ़ा था, तो ये 1931 ही है। और बाकी आप लोग ज्यादा शक हो तो देख लीजिएगा, मैं एक बार और आपको वो भेज दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, वो भेज दूंगा इबारत, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैं इबारत भेज दूंगा, अभी टाइम ये हो रहा है, मैं भेज दूंगा याद करके इंशाल्लाह। सवाल नंबर 13 है अजरा अब्दुर्रहमान शकरी, ये भी हो गया। हाँ, सवाल नंबर 14 है मन कालल बैत ताली, नीचे दिए हुआ शेर किसने कहा है? अला या ताइरल फिरदौसी क़ल्बी लका बुस्तानु फफीहि ज़हरु वल माउ व फीहि अल गुस्नु फ़ैनान। तो ये किसने कहा? ये बहुत ही मशहूर शेर है, हर एक की ज़बान पे जारी रहता है ये शेर तकरीबन। तो इस वजह से ये शेर आपको भी होना चाहिए कि किसने लिखा है। तो बताएं किसने लिखा है? अब्दुर्रहमान शकरी ने ये शेर कहा, अला या ताइरल फिरदौस क़ल्बी लका बुस्तानु फफ़ीहि ज़हरु वल माउ व फ़ीहि अल गुस्नु फ़ैनान। चलिए पहले हम शेर समझते हैं। शेर का तर्जुमा करने से पहले इसका मफ़हूम समझें। हम लोगों ने पहले समझा था कि इन्होंने इस पूरी शायरी में उन्होंने शायरी के इस पूरे कसीदे में उन्होंने शायरी के बारे में बताया है। और ये जो कसीदा लिखा है इन्होंने, ये जो कसीदा लिखा है किसी को एड्रेस करके लिखा है, और एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक सिंबल यूज़ किया है, वो सिंबल है ताइरुल फिरदौस का, यानी कि जन्नत का परिंदा। एक सिंबल है, उस जन्नत को के परिंदे को अपने इमेजिनेशन में तस्वुर करके, इमेजिन करके वो कहते हैं कि देखो ये जो दिल है ना, ये जो दिल है, ये दिल तुम्हारे लिए बाग है, हाँ, और इस बाग में पानी है, इस बाग में सब कुछ है। तो गोया के ताइरुल फिरदौस से में भी हो सकता है कि इससे वो एक सिंबल है ताइरुल फिरदौस, लेकिन इससे में भी हो सकता है कि शेर मुराद ले रहा हूँ, वो कसीदे को मुखातब करके कह रहे हूँ कि एक कसीदा, एक शायरी, तुम जो शायरी होती है और तुम्हारा जो वजूद होता है, वो तुम्हारा वजूद होता है मेरे दिल में, और मेरे दिल ही में ए शायरी मतलब परिंदा है, तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो अब शेर देखिए तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तायर मिन से परिंदा, फिरदौस मिन से जन्नत, तायर अल फिरदौस जन्नत का परिंदा, कल्बी मिन से मेरा दिल, बुस्तान मिन से बागीचा गार्डन। आगे है फफीही ज़हरु, ज़हरुन मिन से फूल, अलमाउ मिन से पानी, अल गुस्नु, गुस्नुन जमा अक़सान मिन से होता है ब्रांच टहनी, और फ़ैनान, और फ़ैनान का मतलब होता है दो अफनान, ठीक है। फ़ैनान का मतलब क्या होता है? दो अफनान। और दो अफनान बोलते हैं कि टहनी वाला दरख्त, बोलते हैं शजरुन दो अफनान, के टहनी वाला दरख्त, यानी मतलब वो ब्रांचेज वाला दरख्त। तो अलगुस्नु फीही फ़ैनान का मतलब होगा कि इसमें जो ब्रांचेज हैं, टहनी हैं, वो बड़े बड़े हैं और बड़े घने हैं और पत्ते वाले हैं। अब शेर देखिए, अला या ताइरल फिरदौस, ए जन्नत का परिंदा, कल्बी लका बुस्तानु, मेरा दिल तुम्हारे लिए एक बाग है, फफीहि ज़हरु वल माउ व फीहि अल गुस्नु फ़ैनानु, और उस बाग में फूल हैं, वल माउ पानी है, व फीहि अल गुस्नु, और उसमें टहनियाँ हैं, फ़ैनानु, जिस टहनियों के पत्ते बड़े बड़े हैं और घने हैं। तो ये पूरा शेर हो गया। तो इस शेर को बस आप इतना याद रखें कि इन्होंने कसीदे के बारे में लिखा है कि शायरी क्या होती है, वो एक सिंबल, जन्नत के परिंदे को लेकर के एक सिंबल बनाया, उनको मुखातब करके सारी चीज़ें उन्होंने बयान की पूरी शायरी में। चलिए सवाल नंबर 15 है, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। मा जमा बुस्तान फिल बैत तालिब, बुस्तान की जमा क्या आती है? बुस्तानून, बुस्तानात, बसातीन, बस्सामून, बताएं। ऑप्शन 3 सर। बसातीन। जी, बुस्तान की जमा बसातीन। सवाल नंबर 16 है ज़हरुन मुफ़रदुन फमा जमअहु, ज़हरुन जो है मुफ़रद, उसकी जमा क्या आती है? ज़हरात, ज़हरून, ज़ुहूर, ज़हाइर। अजहर तो होगा तो नहीं है सर। ज़ुहूर होगा ज़ुहूर जी, होगा तो। ज़ुहूरुन होगा, ज़ुहूरुन।
जी 3 नंबर। बिल्कुल। सवाल नंबर 16, जहरुन मुफरद है जिसका माना फूल होता है, उसकी जमा है जुहूरुन। अजहर क्या होगा सर? अजहार भी जमा है, अजहार भी है नहीं, उसकी जमा। वही नहीं है। हाँ अजहार नहीं दिए हैं। अ, तो अजहार तो बहुत ही कॉमन है, जो यूज़ बहुत होता है, और ज़ुहूर का भी यूज़ होता है लेकिन कम है, इसी वजह से। तो पहला वाला शेर सवाल में नंबर जी 15 में क्वेश्चन में पहला वाला शेर में कितने शेर बोला था? ये शेर का मफहूम क्या है ये ना? हाँ सर। ठीक है, ओके। देखिए, शेर का तर्जुमा करने से पहले आप मफहूम समझें। मफहूम ये समझें, सबसे पहली चीज़ ये कि शेर जो होता है ना, शेर शेर होता क्या है? आपसे अगर सवाल करूं कि शेर होता क्या है, अभी ठीक से समझ जाएंगे। शेर होता क्या है? तो शेर जो होता है, पहले ये समझें कि दिल के अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं, इमोशंस पैदा होते हैं, ट्रू इमोशंस, वही होते हैं शेर। उसी को अल्फाज में लिख देते हैं तो वो बन जाता है शेर। तो अब ये जो पूरा का शेरो पूरा का शेरो पूरा माउ जी शेरो मौजून मुकफ। हाँ, देखिए, वो आप जो तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। मैं शेर के बारे में बता रहा हूँ उस हिसाब से जो शायर कहना चाहते हैं, ठीक है। शेर के अंदर वजन होता है, काफिया होता है। चलिए आप ये बता दीजिए ताकि एक वो भी पता हो जाए सबको। अश्यारु मौजूनुन मुकफ़न, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये आपका हो गया शेर के ढांचे के हिसाब से, मतलब है उनकी शक्ल के हिसाब से आप कहेंगे कि शेर जो है मौजून होता है, यानी इसके अंदर वजन होता है, इसके अंदर काफिया होता है, रदीफ होती है, ठीक है। ये शेर का हो गया ढांचा। लेकिन शायर जो बयान कर रहा है, ये कर रहा है शेर के अंदर जो चीजें होती हैं, यानी उसके मानी के बारे में बयान कर रहा है कि शेर के अंदर होती क्या है। तो वो जो है इंसान के दिल के जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस जो होते हैं दिल के, ट्रू इमोशंस जो होते हैं, उसी को बोलते हैं शेर। उन्हीं ट्रू इमोशन को जब अल्फाज में लिख देते हैं, फिर वज़न डाल दिया जाता है, काफिया डाल दिया जाता है, तब वो बन जाता है शेर। लेकिन होता क्या है, असल में वो ट्रू इमोशन होते हैं, सच्चे जज्बात होते हैं। तो अब शायर जो है इसी ट्रू इमोशन को बयान करने के लिए, बताने के लिए कि शेर ये होता है, उन्होंने एक सिंबल, यानी उन्होंने एक रमज अख्तियार किया है। वो रमज है ताइरुल फिरदौस का, यानी कि जन्नत का परिंदा। शायर अपने ख्याल में एक सिंबल, एक रमज अख्तियार किया है, जन्नत का परिंदा। तो उस जन्नत के परिंदे को वो मुखातब करके कह रहे हैं कि ए जन्नत का परिंदा, तुम्हारे लिए हमारे दिल में सब कुछ है। तो अब यहाँ पे एक बात याद रखें, ये ताइरुल फिरदौस जो जन्नत का परिंदा है, तो ये जन्नत का परिंदा है कौन? तो जाहिर सी बात है, ये जन्नत का परिंदा जो है शेर है। शायर जो है जन्नत के परिंदे से मुराद शेर को ले रहे हैं। फिर जो है शायर इस जन्नत के परिंदे को मुखातब करके कह रहे हैं। तो और ये जन्नत का परिंदा कौन है? ये शेर है कि जन्नत का परिंदा, मेरा दिल तुम्हारे लिए एक बाग है। मतलब ये है कि मेरे दिल जो है इसके अंदर अच्छे जज्बात होते हैं। जिस तरह बाग होता है, बाग में पानी होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, और उसमें और उस फूल में और उस दरख्त में और टहनियाँ होती हैं, हरे भरे पत्ते होते हैं। तो वही कह रहा है कि ए जन्नत का परिंदा, यानी कि ए शायरी, मेरा दिल तुम्हारे लिए बाग है, इसमें फल फूल सब हैं। फल फूल सब का मतलब ये हुआ, इसमें फल की सूरत में, अच्छे फूल की सूरत में अच्छे जज्बात हैं, खूबसूरत इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो असल शायर पूरी चीज़ों को ये कहना चाहता है। अब शेर देखिए, अला या ताइर अल फिरदौस क़ल्बी लका बुस्तान, ए जन्नत का परिंदा, मेरा दिल तुम्हारे लिए बाग है। अब ये ताइर अल फिरदौस एक सिंबल है, इस सिंबल से मुराद यहाँ पे शेर है। वो शेर को कह रहे हैं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए एक बाग है। जी समझ गए ना? मतलब ये क्या सर बोलता है कि ये तो छाती के लिए लगाए आपकी परिंदे। सुनिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, रीजन क्या है पता नहीं, मैं आपको क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ। मेरे सर जो परिंदा है ना सर, आपकी आवाज आ रही बोल रहे हैं कि मैं बोल जो रहा हूँ परिंदा है वो आपका दरमाजी है ना सर।
आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ, अक्काद या माजनी सुन रहा हूँ, वो कहना क्या चाहते हैं? बोल रहा हूँ कि जो संख्या সাহেব ভাই তুমি মনে मतलब হয় হেডফোন লাগিয়ে কথা বলছো, একটু দূরে থেকে কথা বলো, কথাগুলো স্পষ্ট আসবে। देखिए हाँ वही है, आप बोलते हैं बीच में आवाज कट जाती है, मैं कुछ भी नहीं सुन पाता हूँ। मेरा सर ये इसमें हाँ आप बोलिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, अगर आपको सुनाई दे गया हो तो आप बताएं प्लीज। हाँ एक मिनट साहिब भाई, एक मिनट। हाँ ओके ओके हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसमें हम लोग ये मतलब कसीदा पढ़े हैं, तो इसमें बताया सर ने कि एक्चुअली ये अब्दुर्रहमान शुक्री ने ये शेर कसीदा पेश किया जब मतलब अक्काद और माजने से कुछ तनाज़ु हो गया था और उसके दोस्त वगैरह उससे दूर जा रहे थे, मतलब उससे करीब नहीं थे। ये उसके हुज़्न से ये कहा था। तो फिर बोलो। हाँ सर हाँ ओके ओके अच्छा अब बात समझ गया। और आपने ये पढ़ा है अपने उस्ताद से कि अक्काद और मैंने माजनी से जब ये विकिपीडिया दूर में हो भी रहे थे, देखा। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। यही है। हाँ जी जी सही बात है। अक्काद और माजनी के पहले दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और तनाज़ु हो गया बीच में, ये तो बात सही है। और आप ये कहना चाहते हैं कि जिस वक्त तनाज़ु हुआ था उसी वक्त उन्होंने ये शेर कहा था, तो कोई बात नहीं, अगर आपने में भी हो सकता है ये, और मेरी नज़र से ये नहीं गुजरा है कि उस वक्त कहा गया होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो अगर आप मतलब श्योर हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है, कहीं पे लिखा हुआ है या कहीं भी, तो बात ये हो सकती है सही। ये तो है जो अनबनट हुआ ना, उसी के बारे में है। मैंने एक किताब में इसका तशरीह पढ़ा है। हाँ नेट में भी तशरीह है इसका, यही है। यही तशरीह है जो अपने फ्रेंड के साथ अनबनट हुआ, वही तशरीह लिखा है। अच्छा ठीक है, जो आपने तो मैं उस चीज देखिए जन्नत का ना, वो असल में अपने फ्रेंड को मुखातब करके कहा है। किसको? अपने फ्रेंड जो अनबनट हुआ ना, उसी को लेकर उन्होंने या फिरदौसल जन्नत कहा। अच्छा ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है, तो असल में उसका गहरे दोस्त ताल्लुक थे, तो जब गहरे दोस्त के दरमियान अनबनट हुआ तो वो अफसोस से ये बात कर रहा है। बिखर गया देखिए मैंने जहाँ तक पढ़ा है, सुनिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो मैंने भी जो बनाया है क्वेश्चन, मैंने भी इसको पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद जो है मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो उसमें से मुझे पता ही चला कि इन्होंने जो है शायरी के बारे में कहा है कि शायरी क्या होती है। देखिए मैं ये बात आप जो कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। बात ये है कि आपको तत्बीक देना पड़ेगा। हाँ असल बात ये है कि देखिए ये तीनों लोग जो थे, तीनों का नजरिया था शायरी के बारे में, ठीक है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, आधी आपकी बात है आधी मेरी बात है, ठीक है। दोनों को मिला लेंगे तो बात कंप्लीट होगी। आप गौर से सुने फिर बात समझ में आ जाएगी। ये तो जो तीनों लोग थे, तीनों ने क्यों ये मदरसा कायम किया था, तीनों का एक नजरिया था शायरी के बारे में, ठीक है। तीनों का एक नजरिया था शायरी के बारे में। तो वो जो नजरिया था तीनों के, बाद में चल करके तीनों में अनबन हुआ। तो अनबन क्यों हुआ होगा? अनबन हुआ होगा इसी वजह से, शायरी के जो तीनों का नजरिया है, तीनों का नजरिया मुख्तलिफ हो गया होगा और बात बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, तो तीनों अनबन हो गए। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल सही है कि ये शेर उन्होंने अनबन के वक्त कहा, अनबनी के वक्त कहा, जबकि तनाज़ुर हो गया। लेकिन जो अनबनी हुआ था उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न तो यही था ना, मतलब शेर के बारे में जो तीनों का नज़रिया था। तो अब वही जो है, इस वजह से मैंने जो पढ़ा है कि इन्होंने मतलब तायर अल फिरदौस को इन्होंने एक रमज़ अख्तियार किया है और इन्होंने शेर के बारे में कहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो लगती है, क्योंकि जो अनबन हुआ है ये तो इसी नज़रिए की वजह से हुआ है। तो इन्होंने शायरी में एक तो वो बयान कर रहे हैं कि जो जुदाई हुई वो, और जिस रीज़न की वजह से जुदाई हुई, शायरी के बारे में जो नज़रिया था, तो वो दोनों चीज़ें बयान कर रहे हैं। तो इस वजह से दोनों को आप सामने रखिएगा तो समझ में आएगा। और एक बात बताऊं कि आपने जो बोला तो इससे और भी मतलब क्लियर हो गए सारी चीज़ें। सर जो एक शेर है ना,
जो वो हल तनफुरु मिन कल्बी कअन्नल कल्बा खव्वानु, इसी से वो साबित होता है। तो वो अपनी फ्रेंड के बारे में एक मिनट रुकिए। अला या ताइर अल फिरदौस फीना, कोई बात नहीं है, आपने फ्रेंड के बारे में पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। शेर शेर देखिए। चलिए हम लोग शेर देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो जहन में रखिए, ठीक, कि इन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में कहा है। और बच्चा मैंने जो पढ़ा है, कि मैंने जो पढ़ के जो समझा है तो वो मैंने लिखा है, इन सब चीज़ों को भी जहन में रखिए। और ये कोई मतलब वो नहीं है कि तारुज हो, कोनो कंट्राडिक्टरी हो, कंट्राडिक्टरी कोई नहीं है। और ये कोई ज़्यादा ये इशू नहीं है, बस फ्रेंड के बारे में है तो वो याद रखें, और ये भी बातें याद रखें जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। और आगे शेर हैं तो शेर से भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे शेर देखिए। उस्तुख़दिमा फ़िल बैत ताली इद्दतु अदवात मौसीक़िया। समझ में आई आपको? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है फ्रेंड के बारे में, तो कोई बात नहीं है, फ्रेंड के बारे में उन्होंने कहा होगा, ठीक है। तो बातें आप जहन में रखिए, कोई इशू नहीं है। और बाकी मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ करके समझा कि इन्होंने जो है शायरी के बारे में इन्होंने सारी चीज़ें कही है कि क्या होता है, तो ये भी जहन में रखें। और दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़े है, शेर में कई चीज़ें बयान होती ही हैं। ठीक है सर। अब देखिए, उस्तुख़दिमत फ़िल बैत ताली इद्दतु अदवात मौसीक़िया फमाहिया। नीचे दिए हुए शेर में कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। फमाहिया, तो ये क्या क्या हैं? वफ़ीही मिनका अनगामुन वफ़ीही मिनका अलहान वलिल अशजारी औतार वनायातुम वईदान। अब ये शेर अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने शेर के बारे में कहा है, ठीक है। और आपने जो वो शेर पेश किया है कि अभी आपने बोला था ना, हाँ, तो उससे पता चल रहा है इन्होंने अपने दोस्त के बारे में कहा। तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने दोस्त की जुदाई भी की होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जुदाई पर उन्होंने ये बताया होगा कि शायरी क्या होती है। ये शेर पहले समझते हैं। वफ़ीही मिनका अनगामुन। सर सबको और म्यूट करने इसमें की समझ में नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ में आ रहा? सर कहता हूँ कि सबको म्यूट कर जो बोलिए म्यूट कर। अच्छा सुनिए, सब म्यूट कर लें, अभी जिनको बोलने की जरूरत होगी फिर अनम्यूट करिएगा। अब समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? आवाज अब आ रही है? जी सर, जी सर। भाई म्यूट कीजिए, भाई म्यूट कीजिए। साहेब वाली म्यूट करो। चलें। वफ़ीही मिनका अनगामुन वफ़ीही मिनका अलहान वलिल अशजारी औतार वनायातुम वईदान। तो ये शेर है। अब इस शेर में जब आप देखेंगे तो इस शेर में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बयान किया है कि अब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है कि जैसे कि वो बजाने की आवाज़ आती है, नगमगी होती है, तो शायरी जो होती है, शायरी में भी वो सारी चीज़ें होती है कि लय होती है, सुर होता है, बजाने की आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें शायरी में होती है। तो इस वजह से वो इस शेर में कह रहे हैं फ़ी, इसमें तुम्हारी तरफ से, तुमसे निकलती है अनगामुन, यानी कि बेहतरीन आवाज़। वफ़ीही मिनका अलहान, अलहान में से भी वही होता है बेहतरीन आवाज़। और इस चीज़ में यानी कि शायरी में या कि तायरुल फिरदौस में तुमसे निकलती है बेहतरीन आवाज़। अलहान में से भी आवाज़। वलिल अशजारी, और दरख्तों से बनते हैं अवतार। ये देखिए, अवतार, नायात, ईदान, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। और वितरून की जमा अवतार, ये भी एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है
नायात भी, और नायात को शायद हम लोग वो बोल सकते हैं बांसुरी, जिसको बांसुरी बोलते हैं, नायात, नायतुन की जमा नायात। और ईदान, उर्दून की जमा ईदान, ये भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं मैंने देखा था, ईदान डालिएगा नो फोटो आ जाएगा। वलिल अशजारी, और दरख्तों से बनते हैं, अवतारुन, अवतार बनते हैं, नायातुन, और बांसुरी बनते हैं, और ईदानुन, ईदान से भी वही है, एक कोई आला है म्यूजिक का। तो अब शेर जो है, इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस शेर में वो तायरुल फिरदौस से वो कहना चाह रहे हैं कि जन्नत का परिंदा। तो ये जन्नत का परिंदा उन्होंने एक रमज़ अख्तियार किया है, और इस रमज़ से मुराद है शायरी, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि शायरी के बारे में कि इसमें जो है शायरी, तुम्हारे अंदर जो अच्छी आवाज़ आती है वो मेरे दिल से आती है, अलहान और अच्छी सुर जो आती है मेरे दिल से आती है, और दरख्तों से ये जितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ये सारे के सारे की आवाज़ मेरे दिल से आती है। ये पूरी शेर कर रहे हैं। अब शेर देखिए, वफ़ीही मिन का अनगामुन वफ़ीही मिन का अलहानु, और इसमें तुमसे अच्छी आवाज़ें निकलती हैं, नगमतुन की जमा, नगमुन जमा अनगाम, और इसी में यानी दिल में तुम्हारी तरफ से अच्छे सुर निकलते हैं। वलिल अशजारी, और दरख्तों से बनते हैं ये तीनों चीज़ें, अवतार, नायात और ईदान। तो ये बताएं, ये शेर समझ में आया? समझ में आया। चले अब बताएं, सवाल नंबर 18 है, अनगामुन जमउन, अनगाम ये जमा है, मुफरदुहा नगमतुन, उसका मुफरद नगमा है, फिल बैती ताली, नीचे दिए हुए शेर में ये जो है वो फीही मिन का अनगाम। फमा माना हो, तो इसका माना क्या है बताएं? अल-फिल्म, अल-वसाइक़ी, अल-मुतरिब, आलतुन मुसीक़िया, हुस्नुस सौत। ऑप्शन 4। हुस्नुस सौत। और नंबर जी बिल्कुल, नगमतुन की जमा अनगाम आती है जिसका माना होता है हुस्नुस सौत, अच्छी आवाज़। मा माना वुजदान, वुजदान का क्या माना होता है? अला या ताइरल फिरदौस इन्न श्शअर विजदानु वफ़ी शद्विका शारुन नफ्सी ला ज़ूरुन वला बुहतानु। अब देखिए, अब ये शेर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बिल्कुल इन्होंने शेर के बारे में लिखा है ये, ठीक है। अब कैसे देखिए कि ए जन्नत का परिंदा, इन्न श्शअर विजदानु, बेशक शेर एहसास है, इन्न श्शअर विजदानु, शेर एहसास है, विजदान से एहसास। वफ़ी शद्विका, शदा यशदु, शदवन में से होता है अनशदा युनशदु इंशादन, यानी कि टू क्या बोलता है, सॉन्ग, सॉन्ग जो गाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं शदवन। और फिर शद्विका, और तुम्हारे गाने में, शारुन नफ्सी, दिल का एहसास होता है, ला ज़ूरुन, जो एहसास के ना झूठा होता है, वला बोहतानुन, ना कि गढ़ा होता है। चलिए पहले शेर समझते हैं, फिर इसका वो देखेंगे, शेर का तर्जुमा करेंगे। अब ये पूरा जो शेर है, तो इस पूरे शेर का में जो मतलब है उसका सीधा सा मतलब ये है कि इस शेर में बता रहे हैं कि शेर होता क्या है। शेर जो है दर हकीकत ये दिल के जज्बात का नाम होता है, एहसास का नाम होता है, विजदान में से होता है एहसास। और जब शेर गाया जाता है तो उसी गाने की वजह से दिल का जो सच्चा एहसास होता है ना, वो एहसास निकलता है जिसके अंदर झूठ नहीं होता, ना किसी तरह का बहतान होता, गढ़ा ना होता, बल्कि जो दिल में एहसास होता है वो दिल से निकलता है, शेर कहने का वक्त है। तो ये जो है उन्होंने अपनी मतलब शायरी के बारे में कहा कि शेर होता क्या है। अब ये देखिए, अला या ताइरल फिरदौस इन्न श्शअर वुजदानु, ए जन्नत का परिंदा, ताइरल फिरदौस जन्नत का परिंदा, इन्न श्शअर वुजदानु, बेशक शेर एहसास है, इन्न श्शअर वुजदानु, बेशक शेर एहसास है। वफ़ी शद्विका शारुन नफ्सी ला ज़ूरुन वला बुहतानु, शदवन में से होता है गाना, शदा यशदु, शदवन में से क्या होता है, अनशदा युनशदु इंशादन। वफ़ी शद्विका, और तुम्हारे गाने के टाइम में, शारुन नफ्सी, दिल का एहसास होता है, ला ज़ूरुन वला बुहतानु, और वो झूठ, ज़ूर में से क्या होता है, झूठ, ज़ूर में से झूठ यानी किदबुन, वो ना झूठ होता है, वला बहतान, और ना बहतान होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो शेर है
इस शेर में भी पता क्या चल रहा है कि उन्होंने शायरी के बारे में कहा है, तो इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है कि इन्होंने लिखा है ये कसीदा अपने दोस्त से जुदाई के वक्त, तो कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा होगा ये दोस्त जुदाई के वक्त, लेकिन दोस्त की जुदाई भी एक दो शेर में रही होगी, लेकिन बकिया शेर में उन्होंने शायरी के बारे में लिखा है कि शायरी क्या है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी नज़र से वो नहीं गुजरा कि आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने दोस्त की जुदाई के वक्त, चूँकि मैंने डायरेक्ट इनका नस पढ़ा है और नस पढ़ के नस से क्या समझ में आया वो मैंने लिखा है, तो इस वजह से तो दोनों चीज़ें याद रखें और एग्ज़ाम में काम आएगा। सवाल नंबर 20 है, मा माना शदवुन फिल बैती तालिश। शदवुन का क्या माना होता है नीचे दिए शेर में, ये बताइए। शेर समझ में आया? इन शेर इन तायर अल फिरदौस इन शेर वजदानु। सवाल क्या हुआ था? सवाल नहीं हल किए थे हम लोग। मा माना वजदान फिल बैती ताली, वजदान का क्या माना होता है नीचे दिए शेर में, तो बताएं। अल एहसास, अल क़ल्ब, अल फ़ुआद, अल दिमाग, बताएं। जी बिल्कुल, अल एहसास। वजदान का माना होता है अल एहसास। शेर का मीनिंग कीजिए एक बार, लास्ट पहला वाला शेर समझ में आएगा। दूसरा वाला समझने से पहले आप शदवुन का माना पहले जानिए। शदा यशदू, शदवन में से होता है सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाना। शदवुन में से होता है गाना गाना। फिर शदवी का तुम्हारे गाने में, यानी कि तुम्हारे गाने के टाइम में जो कुछ होता है वो क्या होता है? शारुन नफ्सी, दिल का एहसास होता है, नफ्स का एहसास होता है। शारुन नफ्सी, नफ्स का एहसास होता है। और वो एहसास जो होता है ला ज़ूरुन, वो झूठा नहीं होता है, वला बुहतानुन, और ना बुहतान होता है। बुहतान किसको बोलते हैं? ज़ुरुन जानते हैं, लाइज झूठा, वो तो पता है। किदबुन, बुहतान किसको बोलते हैं? बुहतान ये है कि एक बात है नहीं, हम अपनी तरफ से बना करके, जो बात है नहीं हम अपनी तरफ से बना करके पेश करते हैं, उसको बोलते हैं बुहतान। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने, एक इंसान है जैद है, उसने कुछ किया नहीं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गाली बकता है, जबकि वो गाली नहीं बकता है। उसने कहा कि उसने फलां को गाली दिया है, तो वो होता है बुहतान। तो फीशद भी का, और तुम्हारे गाने के टाइम में दिल का एहसास होता है। ला शारुन से होता है एहसास, ठीक है। ला ज़ूरुन, और वो एहसास ना झूठा होता है, वला बुहतान, और ना बुहतान होता है। समझ में आया? जी सर। चलिए सवाल नंबर 20 है, मा माना शब्द। जी सर, बोतन का मीनिंग जी क्या बोले। है? बोतन जो किसका वर्ड माना? है उसका मीनिंग बोतन। मन गड़ा कथा। ठीक है, बोहतान। बोहतान अभी बताया। बोहतान का पहले आप समझना, फिर मैं उसको बताता हूँ अरबी में क्या बोलेंगे। बोहतान बोलते हैं ये उर्दू में बहुत यूज होता है। सुनिए, बोहतान होता है ये कि एक बात है, एक कोई बुरी बात है, ठीक है, किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि उसने ये किया है, तो इसको बोलते हैं बोहतान। अब इसको हम अरबी में बोल सकते हैं। जी, किसी को तोहमत लगाना, राइट? हाँ, इसको बोल सकते हैं, हाँ इसको बोल सकते हैं अत्तुहमा, ठीक है, अल इत्तिहाम। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं नसबु अशई अल कादिब, हाँ, इला अहदिन, कि किसी की तरफ झूठी बात मंसूब कर देना, किसी की तरफ झूठी बात मंसूब कर देना, तो इसी को बोलते हैं बोहतान। इसी को बोलते हैं तोहमत, दूसरे वर्ड में तोहमत बोलेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया बोहतान? जी सर। चलिए सवाल नंबर 21 है, मा माना शदवुन फिल बैती ताली। शदवुन का क्या माना होता है? अला या ताइर अल फिरदौसी इन शअर वजदानु और फिर शदवी का शारुन नफ्सी ला ज़ूरुन वला बुहतानु। तो बताएं शदवुन का क्या माना है? जी जी, शदवुन का माना है अल इंशाद, और फिर शदवी का यानी फिर इंशादी का। चलिए सवाल नंबर 21 है, मादा यक़सिदु शायर बिलबैती ताली। शायर नीचे दिए हुए शेर से क्या मुराद लेते हैं? अला या ताइर अल फिरदौसी नशर वजदानु और फिर शदवी का शार नफ्स ला ज़ूरुन वला बुहतानु। तो इससे क्या मुराद लेते हैं आप लोग खुद बताएंगे, मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ता हूँ।
नंबर 1 है लैस अश्शअरु इल्ला अहासीसु यसुगुहा अश्शाइरु फी क़ल्बिल क़सीदा, क़ल्बी नहीं क़ालब, क्यों मतलब फी क़ालिबिल क़सीदा। शेर जो है वो एहसास है, लैस शेर शेर नहीं है मगर वो एहसास यानी इमोशंस। सागा यसुगु का मतलब होता है ढालना यानी कि कहना, जैसे बोलते हैं सुगतु अहासीसी की क़ालिब शेर, मैंने अपने एहसास को शेर के कालब में ढाल दिया है, तो उसको बोलते हैं ढालना। कि शेर जो है सिर्फ और सिर्फ एहसास है, यसुगुहा शायर जिसको शायर ढालता है, फी क़ालिबिल क़सीदा कसीदे के कालब में, यानी कि अहासीस है जिसको शायर बयान करता है कसीदे में। ऑप्शन नंबर 1 ये हुआ। ऑप्शन 2 है इंदमा युनशिदु शायर अल कसीदा युअब्बिरु अन खलजात नफ्स सादिक़ा अल बईदा मिन अल किज़्ब, कि जब शायर कसीदा कहता है, युनशिदु शायर कसीदा, जब शायर कसीदा कहता है, युअब्बिरु, अब्बरा अन का मतलब होता है बयान करना, युअब्बिरु वो बयान करता है अन खलजात नफ्स सादिक़ा अपने दिल के सच्चे एहसास को, खलजात में से होता है अहासीस एहसासात, अपने दिल के ट्रू इमोशंस को बयान करता है, अल बईदती मिन अल किज़्बी जो कि झूठ से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है कुल्लु मिनल इस्नैन, कि दोनों बातें शायर मुराद ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है लैस शेअरु इल्ला हसीस कादिबा, कि शेर जो है ये सिर्फ और सिर्फ झूठे जज्बात का नाम है। तो बताएं अब ये शेर है कि ए जन्नत का परिंदा, शेर जो है विजदान का नाम है और तुम्हारे गाने में दिल का एहसास होता है जो कि ना झूठा होता है ना उसमें कोई बहतान होता है। तो बताएं शायर इससे क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन 3 जी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि शायर 1 भी कहना चाहते हैं, 2 भी कहना चाहते हैं, 4 नहीं कहना चाहते हैं। क्यों? 4 में कहा जा रहा है कि शेर वो झूठे एहसास का नाम होता है, ये तो शायर कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप शेर पढ़ लीजिए तो शेर में है कि शेर जो है सच्चे जज्बात का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा क्योंकि शेर एहसास होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, क्यों? वजह है कि शेर एहसास सच्चे एहसास होता है जिसके अंदर झूठ नहीं होता है। चलिए ऑप्शन आ गया, क्लियर हो गया। हाँ चलिए सवाल नंबर 22 है मादा यक़सिदु शायर बिताइरुल फिरदौस, शायर ताइरुल फिरदौस से किसको मुराद लेते हैं? नंबर 1 अलबबगा, अलुस्फूर, कुल्लु मिनल इस्नैन। नंबर 4 यक़सिदु बिही रमज़न हय्यन युहाविरुहु व यश्तकी इलैहि, कि इससे वो जो है एक जिंदा सिंबल मुराद ले रहे हैं जिससे वो गुफ्तगू करते हैं और उससे शिकवा करते हैं। तो बताएं कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि शायर जो है ताइरुल फिरदौस से एक जिंदा सिंबल मुराद ले हैं जिससे गुफ्तगू करते हैं उससे शिकवा करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 23 है मा हियल मदरसा अल्लती यंतमी इलैहा शायर, कि वो कौन सा मदरसा है जिसकी तरफ शायर मंसूब होते हैं, यानी कि जिससे शायर मुंसलिक हैं। मदरसा तो दीवान है। ये कौन सा मदरसा है जिससे कि वो शायर वो अब्दुर्रहमान शकरी मुंसलिक हैं? जी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मदरसा तो दीवान है वो। ठीक है, चलिए ये कसीदा हो गया। अब इन कसीदों में जो दोनों बातें कही गई, दोनों बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है। एक बात ये कि इस कसीदे में शायर ने शेर के बारे में बयान किया। दूसरी चीज़ ये इन्होंने इनकी जो है लड़ाई हुई थी अपने दोस्तों से। ठीक है, तो उन्होंने इस वक्त एक कसीदा कहा था। गरचे मैंने नहीं पढ़ा है, आप लोग कह रहे हैं तो इस वजह से आप लोगों को मतलब मैं सोर्स बना के कह रहा हूँ ये बात। इस वजह से अगर कुछ हो तो आप लोग जी सही है। हाँ, क्योंकि मैं जो पढ़ूंगा तो बताऊंगा, आप लोग बोल रहे हैं तो आपको सोर्स बना के आ रहा हूँ। और बाकी अगर मुझे मेरी नज़र में आया तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। लेकिन दोनों बातें बिल्कुल सही है कि शेर के बारे में उन्होंने कहा है। अब इन्होंने फिर ताइरुल फिरदौस से में भी हो सकता है शिकवा भी बयान किया हूँ। तो चलिए एक और पढ़ लेते हैं आज, इसको ख़त्म कर देते हैं। और एक दो कसीदा बाकी हैं बीच में, तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। कल से हम लोग क्या शुरू करें? कल से बलागत या क्या पढ़ेंगे? जी सर, बलागत पढ़ेंगे। बलागत बलागत पढ़ेंगे या उधर से पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फिक़ह वगैरह? फिक़ह वगैरह भी अच्छा है नहीं, सर। बलागत पढ़ेंगे, बलागत पढ़ेंगे, बलागत। जरूरी है।
ٹھیک ہے کوئی نہیں, جو بھی پڑھائیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ان سب کی تو بک وغیرہ آ چکی ہے, لاسٹ والا جو ہے ان پہ مطلب نہیں ہے, تو اس وجہ سے اگر وہ اس کی ضرورت ہو تو پہلے وہ بھی پڑھا سکتے ہیں. خیر کوئی نہیں, بلاغت پڑھ دیں گے. ایک شعر اور ہے ابو الاعلی مارری کا, اس کو پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ پڑھا دیجیے سر, پڑھا دیجیے. چلیے, اعلی ابو الاعلی المارری, یہ ابو الاعلی مارری کا شعر ہے. الا فی سبیل المجد ما انا فاعل, اور یہ بہت ہی مشہور قصیدہ ہے. اس قصیدہ کا ایک شعر ہے بہت ہی مشہور ہے کہ ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن اني جاهل. مطلب جب میں نے دیکھا کہ جہالت عام ہو گئی ہے تو میں بھی ایک دم سے جاہل بن گیا. جاہل تو مطلب میں بھی جان بوجھ کر جاہل بن گیا. چلیے سوال نمبر 1 ہے کہ ما اسم ابو الاعلی المارری, ابو الاعلی مارری کا نام کیا ہے بتائیں؟ آپشن 2 احمد بن عبداللہ. احمد بن عبداللہ نام ہے ابو الاعلی مارری کا, بالکل صحیح. سوال نمبر 2 ہے لماذا يقال لابي الاعلی المارری, یعنی لابي الاعلی المعریہ, کہ ابو الاعلی کو معری کیوں کہا جاتا ہے, یعنی مطلب اس کا یہ جو ہے لقب المعری کیوں ہے؟ نسبتاً الی مسقط راسی, نسبتاً الی ابی, نسبتاً الی استاذی, نسبتاً الی المدرسہ التي تخرج ہے. بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 1. آپشن 1 صحیح ہوگا. یہیں پہ ایک چیز اور یاد رکھنا, یہ مسقط راسی ہی جو ہوتا ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا ہے نا اسی کو بولتے ہیں مسقط راسی, یعنی کہ جنم بھومی جس کو بولتے ہیں, جنم بھومی. اصل دیکھیے سقط یسقط کا مطلب ہوتا ہے گرنا, مسقط ہوتا ہے گرنے کی جگہ, راس من سے سر, اس سر کے گرنے کی جگہ. اصل بات یہ ہے کہ جب وہ انسان جنم لیتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو ہے نا بچے کا سر ہی گرتا ہوگا, تو اسی وجہ سے مسقط راسو ہی بولتے ہیں جنم بھومی. تو نسبتاً الی مسقط راسی, اس کی جنم بھومی کی طرف منسوب کر کے. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا. کیوں کہ ماررا ایک جگہ ہے تو وہیں کے رہنے والے تھے, وہیں سے ان کو مارری کہا گیا. سوال نمبر 2 ہے, ہاں سوال نمبر 3 ہے فی ای مرحلۃ من العمر اصیب المعری بالجدری فذهبت بیسری عینیہ وبیضت الیمنی, کہ کس عمر میں مارری کو ایک بیماری ہو گئی چچک کی, ٹھیک ہے, تو اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوا؟ فذهبت بیسری عینیہ, اس کی بائیں آنکھ اس بیماری نے ختم کر دیا, یعنی بیماری کی وجہ سے بائیں آنکھ ختم ہو گئی. وبیضت الیمنی, اور دائیں آنکھ سفید ہو گئی. تو کس عمر میں ایسا ہوا تھا تو بتائیں؟ 4 سال. آپشن 3. آپشن نمبر 3. سر آپشن 3 آپشن نمبر 4 سال. آپشن 3 سر. تو آپشن 3. 4 سال یا 7 سال؟ آپ نے 4 سال کہاں پڑھا ہے؟ سر یہ آپشن آپ کا آپشن میں 4 ہی سال ہے, لیکن 3 سال ہے. دلیل الاختفار جو گنائی کا ہے اس میں 3 سال لکھا ہے. 1 منٹ رکیے, 3 سال نہیں 1 منٹ 7 میں سال بتا رہا ہوں. احمد حسن جیت کے کتاب میں ہے. 7 سال میں ہوا تھا ان کو, 7 سال. 1 منٹ میں بتا رہا ہوں. میں نے احمد حسن زیاد سے کوشچن بنایا ہے, ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں, میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. 4 سال میں طه حسین اندھا ہوا تھا. ہاں 1 منٹ, یہ 7 سال میں ہوا تھا. 1 منٹ دیکھ لیتا ہوں. لیکن ہم نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں آپ کا 4 سال کا آپشن صحیح. بس ہاں ٹھیک ہے, یہ جو ہے فلما بلغ الرابع من عمری اصیب بالجدری فذهبت بیسری عینیہ وبیضت الیمنی, یہ 4 سال میں ایسا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جی سر. 4 سال میں ایسا ہوا تھا جی. تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. 3 کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا.
تو یہ جب 4 سال کے ہوئے تھے تو اسی وقت ان کو بیماری ہوئی تھی. اس بیماری کی وجہ سے ان کی بائیں آنکھ ختم ہو گئی اور دائیں آنکھ کے اندر وہ سفید پن آ گیا. 4 سال. آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. تو سوال نمبر 3 کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. سوال نمبر 4 ہے ما هو اللون الذي هو اول ما عرفه المعري واخر ما رآه. کہ وہ کون سا رنگ ہے جس کو مارری نے سب سے پہلے پہچانا اور سب سے اخیر میں اس کو دیکھا. السواد، الحمرہ، اللون الاصفر، اللون الازرق. احمر. بتائیں. آپشن 2. 2 سر. آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. اللون الاحمر. کہ اللون الاحمر ہی وہ رنگ ہے جس کو مارری نے سب سے پہلے پہچانا اور سب سے اخیر میں اس کو دیکھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کو پہچانا اور سب سے اخیر میں ان کو دیکھا. سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، اوکے. سوال نمبر 5 ہے من سما نفسہ رہن المحبسین. کس نے اپنے آپ کو، محبس میں سے کیا ہوتا ہے؟ قید کرنے کی جگہ. محبسین 2 قید کرنے کی جگہ. کس نے اپنے آپ کو 2 قید کرنے کی جگہ کا قیدی نام رکھا؟ 2 قید خانے کا قیدی. اردو میں اگر ہم بولیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کس نے اپنے آپ کو 2 قید خانوں کا قیدی بنا لیا، قیدی نام رکھا. آپشن 3 ہوگا سر. جی آپشن 3 ہوگا صحیح. کیوں؟ جی ابو العلا مارری، اسی کا نام محمد بن عبداللہ ہے. من الكاتب الفيلسوف الذي لا يأكل الحيوان ولا ما ينتج منه قانعا من الطعام والحلوى بالعدس والتين. کہ وہ کون سے فیلسوف یعنی فلسفی رائٹر ہیں جو کہ نان ویج نہیں کھاتے تھے. الحیوان مطلب نان ویج نہیں کھاتے تھے. علامہ انتجو اس کو پورا کر سکتے ہیں، جو کہ نہ جانور کھاتے تھے اور جانور سے جو کچھ بنتی ہیں. نتاجہ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو چیز بھی پیدا ہو، جانور سے جو چیز پیدا ہو، جیسے کہ انڈا، دودھ. اور اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بھی بول سکتے ہیں یہ نان ویج، جو نان ویج نہیں کھاتے تھے. قانعا مع الطعام، وہ کھانوں میں صرف حلوہ، کھانوں میں اور حلوہ میں صرف دال اور 3 انجیر پہ وہ اکتفا کرتے تھے. تو کون سے کاتب ہیں؟ ابو العلا مارری ہیں. ابو العلا مارری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے انڈین جو فلسفہ ہے نا برہمی، اس سے یہ مطلب انسپائر تھے ابو العلا مارری. یہی وجہ ہے کہ وہ بن گئے تھے، نان ویج بن گئے تھے، چونکہ یہ کنسیپٹ انڈیا میں تو بہت ہی عام ہے. سوال نمبر 7 ہے جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف شاکاہاری سوال کے لیے نمبر، ہاں شاکاہاری، یہ ماساہاری نہیں، شاکاہاری تھے بالکل. سوال نمبر 7 ہے من قال البیت التالی. نیچے دیے ہوئے شعر کس نے کہا ہے؟ ھذا ما جناہ ابی علیہ وما جنیت علی ابی. ھذا ما جناہ ابی علیہ، یہ کس نے کہا ہے؟ پہلے شعر بتائیں. ابو العلا مارری. اور یہ شعر جو ہے بہت ہی مشہور ہے، اسی وجہ سے میں نے شعر لکھا ہے، کیونکہ یہ شعر اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ ان کی جو قبر ہے نا، قبر پہ انہوں نے لکھنے کے لیے کہا تھا یہ شعر کہ جب میں مروں گا تو میرے قبر پہ یہ شعر لکھ دینا. اصل میں بات یہ ہے کہ ابو العلا مارری قائل یہ تھے کہ ہم شادی نہ کریں گے، کیونکہ ہم تو خود ہی زمین پہ بوجھ ہے. میں تو ایک بوجھ ہوں، کیونکہ دنیا میں اتنا غم ہے کہ میں خود جو ہے غم میں مبتلا ہوں. تو میں کیوں شادی کر کے نئی نسل لاؤں گا اور نسل لا کر کے ان کو غم میں مبتلا کر دوں گا؟ یہ تو میرے ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے پیدا کر کے غم میں مبتلا کر دیا، تو میں کیوں دوسروں پہ ظلم کروں گا، بچوں پہ. اس وجہ سے وہ مطلب شادی کے قائل نہیں تھے. اور دیکھیے اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈین فلسفے سے بالکل متاثر تھے، کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو بدھا کو، تو ان کا بھی یہ فلسفے تھا. تو اب شعر دیکھیے. ھذا ما جناہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ میرے باپ نے مجھ پہ کیا ہے. وما جنیت علی احد، اور میں نے کسی پہ یہ ظلم نہیں کیا.
تو یہ شعر یاد رکھیے گا، یہ ابو العلا مارری نے کیا، بہت مشہور شعر ہے، اور یہ انہوں نے اپنے قبر پہ لکھوانے کے لیے مطلب کہا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے سمى المعري نفسه رهن المحبسين فماذا يقصد بالمحبسين؟ معرری نے اپنے آپ کو دو قید خانوں کا قیدی کہا ہے، تو دو قید خانوں سے کیا مراد ہیں؟ محبس العام، محبس المنزل، کل آپشن من سی الاثنين، ہوگا سر، محبس آپشن سی۔ الشدید الضرر۔ جی آپشن آپشن 3 تھا صحیح ہوگا، کیوں؟ جی کیونکہ محبسین یعنی دو قید خانہ، ایک قید خانہ ہے اندھے پن کا اور دوسرا قید خانہ منزل کا، کیونکہ ایک تو اندھا تھے، دوسرا ایک انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور وہیں پہ وہ بیٹھے رہ گئے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ نام رکھا۔ سوال نمبر 9 ہے فی ای بحر تقع القصیدہ التي قالها المعری، دیکھیے جلدی جلدی میں آج ہی بنایا ہوں نا تو رہ گیا میں نے، المعری ہے۔ فی ای بحر تقع القصیدہ التي قالها المعری، مطلب وہ کہ کس بحر میں وہ قصیدہ ہے جو کہ معری نے کہا ہے اور جس کا مطلب نیچے ہے، وہ شعر یہ ہے الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف واقدام وحزم ونائل، تو یہ کس بحر میں کہا تھا؟ طویل میں بحر ہے سر۔ بحر طویل میں، بالکل ماشاء اللہ، یہ بحر طویل میں ایک قصیدہ کہا تھا معری نے۔ سوال نمبر 10 ہے ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف واقدام وحزم ونائل، تو یہ جو شعر ہے اس سے شاعر کیا مراد لیتے ہیں؟ چلیے پہلے شعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر سمجھ میں آئے گا۔ شعر کے ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اتنا سمجھیں کہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں شرافت حاصل کرنے کے لیے، ڈگنیٹی حاصل کرنے کے لیے میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، میں بہت ہی پاک دامن بھی ہوں، یعنی کہ جس کام میں تھوڑی سی بھی میری شرافت پہ پاتا ہوں وہ کام نہیں کرتا ہوں، اور میں بہت ہی بہادر بھی ہوں، اور میں کوئی کام سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، حزمون کا معنی ہوتا ہے، اور میں بہت ہی سخاوت کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ پیسے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے پیسے میں خرچہ بھی کرتا ہوں، تو یہ سارے کام کرتا ہوں میں شرافت اور ڈگنیٹی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ شعر کا پورا مطلب یہ ہوا۔ اب شعر دیکھیے، الا یہ بات سن لو، فی سبیل المجد، مجد میں سے ڈگنیٹی شرافت، سبیل میں سے راستہ، کہ شرافت کی راستے میں ما انا فاعل، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ کیا کیا ہیں؟ عفاف، وہ پاک دامنی ہیں، اور عربی میں کیا بولیں گے اس کو، آگے اس کے کوشچن سے ہیں تو ابھی آپ اردو میں ہی سمجھتے چلے جائیں، وہ پاک دامنی ہے۔ اقدام، اقدام اقدم یقدم، اقدام المعنی ہوتا ہے پیش قدمی کرنا، یعنی کہ کوئی اچھے کاموں میں ایک دم آگے بڑھنا، تو اس کا مطلب یہاں شجاعت، بہادری، اور وہ بہادری ہیں۔ حزمن، حزمن کو بولتے ہیں کہ کوئی کام جو ہے سوچ سمجھ کے کرنا، اس کو اردو میں ایک ورڈ بولتے ہیں دور اندیشی، عربی میں ورڈ آئے گا اس کا، اور دور اندیشی۔ نائل، نائل کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، تو سن لو شرافت کی راہ میں، یعنی کہ شرافت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی میں کرتا ہوں وہ ہے میری پاک دامنی اور شجاعت، بہادری، اور دور اندیشی اور سخاوت، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں۔ شعر کلیئر ہوا؟ چونکہ یہ وہ ہے مطلع القصیدہ ہے، اس وجہ سے اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چلیے اب آپشن دیکھیے کہ ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نمبر 1 ان عفافی وحزمی وکرمی کل ذلک لاحراز المجد، احراز یحرز، احراز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاصل کرنا، ٹھیک ہے، الحصول علی شیء، ٹو گین، تو میری پاک دامنی، میری دراندیشی، میری شرافت، سب کے سب شرافت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپشن 1 یہ ہوا۔ آپشن 2 ہے ان عفافی وحزمی وکرمی کل ذلک لنیل المجد، نیل من سے کیا ہوتا ہے؟ پانا، کہ میری پاک دامنی، میری شرافت، سب کچھ شرافت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 3 ہے کل من سے۔ نمبر 4 ہے ان عفافی وحزمی وکرمی کل ذلک یبعدنی من المجد، یعنی پاک دامنی، دور اندیشی، سب کے سب یہ مجھے شرافت سے دور کر دیتا ہے۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 3۔ جی آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا، کیونکہ شاعر اس سے یہ 3 مراد لیتے ہیں، کیونکہ وہ 1 بھی کہنا چاہتے ہیں 2 بھی کہنا چاہتے ہیں۔ چلیے ما معنی نائل، نائل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الا فی سبیل المجد ما انا فاعل وعفاف واقدام وحزم ونائل، نائل کا کیا معنی ہوتا ہے؟
अलकरम व सखा अलबुखल अलगज़ब अस्सखत। जी ऑप्शन 4 ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सर, ऑप्शन 1। 1 जी दानशील ताजिल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों? वजह है कि नाइल का माना है अलकरम व सखा, यानी कि सखावत करना और दरिया दिली, इसको बोलते हैं नाइल। मा माना अल हज़्म, हज़्म का क्या माना होता है? अला फी सबीलिल मज़्द माना फ़ाइल व अफ़ाफ़ व इक़दाम व हज़्म व नाइल। तो हज़्म का क्या माना होता है? अलकरम व सखा अल कफ़्फ़ु अम्मा ला यहिल्लु व ला यहसुनु, यानी कि उस चीज़ से रोकना जो कि हलाल ना हो और बेहतर ना हो, उस चीज़ से रुक जाना, कफ़ में से। और 3 है अत्तबस्सुरु फ़ी अवाक़िबिल उमूरि व तदब्बुरु फ़ी नताइजिहा, कि किसी भी काम के जो अंजाम होते हैं उसमें गौर करना और उसके नताइज में सोचना, विचार करना। तो 4 है शजा। तो बताएं हज़्म का क्या माना है? ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 सर, ऑप्शन 3। फिर आफाफ का क्या माना होगा? सर ऑप्शन 3 होगा। जी ऑप्शन 3 होगा। देखिए सवाल नंबर 12 जो वो है हज़्म है, हज़्म का माना ये है अत्तबस्सुर फ़ी अवाक़िबिल उमूरि व तदब्बुर फ़ी नताइजिहा, क्योंकि हज़्म बोलते हैं दूर अंदेशी को। मतलब ये कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो सोच विचार के करे कि इससे मुझे घाटा तो नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो वही है अत्तबस्सुर फ़ी अवाक़िबिल उमूर, कि कामों के अंजाम में गौर करना, व तदब्बुर फ़ी नताइजिहा, और उसके अंजाम में सोचना विचारना। और बाकी ये जो है अलकफ़्फ़ु अम्मा ला यहिल्लु व ला यहसुनु, तो ये होगा अफ़ाफ़। क्योंकि अफ़ाफ़ किसको बोलते हैं? बोलते हैं वो बड़ा पाक दामन है। अफ़ाफ़ में से उर्दू में बोलते हैं पाक दामन। पाक दामन का मतलब क्या होता है कि जो हलाल चीज़ें नहीं होती हैं या जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसको अच्छा नहीं माना जाता, उससे इंसान दूर रहता है, तो उसको कहा जाता है अफ़ाफ़, पाक दामन। तो अफ़ाफ़ बोलते हैं अलकफ़्फ़ु, अलकफ़्फ़ु में से होता है अल-इम्तिनाउ, यानी कि रुक जाना, अम्मा ला यहिल्लु व ला यहसुनु, उस चीज़ से जो कि हलाल ना हो और बेटर ना हो। इस वजह सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि हज़्म का माना है अत्तबस्सुर फ़ी अवाक़िबिल उमूर व तदब्बुर फ़ी नताइजिहा। चलिए सवाल नंबर 13 है मादा यक़सिदु शायर बिल बैत ताली, शायर नीचे दिए हुए शेर से क्या मुराद लेते हैं? अइंदी वक़द मारस्तु कुल्ल ख़फ़िय्यतिन युसद्दक़ु वाशिन औ युख़य्यबु साइलु। शेर पहले समझिए फिर उसका ऑप्शन लिखिएगा। ये जो शेर है, इस शेर से मुराद क्या ले रहे हैं? इस शेर से शायर ये कहना चाहते हैं कि देखिए मैंने तो बहुत ही तजुर्बा किया, जो बड़े बड़े मुश्किलात होते हैं ना, जो बहुत ही संगीन मामला होता है, जो संगीन सख्त घड़ी होती है, मैंने उसको पार कर लिया है। उसको पार करने के बाद मैं तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन गया हूँ, मुझे बहुत ही तजुर्बा हो गया है। अब जब मुझे तजुर्बा हो गया है तो मेरे पास कोई आकर के वो करे, किसी की गिबत करे, हाँ चुगलखोरी करे, तो क्या मैं उसको मान लूँगा? नहीं, मैं उसको नहीं मान सकता हूँ, उसकी मैं तस्दीक नहीं करूँगा, बल्कि मैं तहक़ीक़ करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने इतनी मुसीबत देखे, मेरे पास कोई मांगने वाला आ जाए, तो क्या मैं उसको नाकाम करके लौटा दूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दर से कोई मांगने वाला नाकाम नहीं जाएगा, बल्कि मैं उसको पूरा करूँगा। शेर का पूरा मतलब ये हुआ। अब शेर देखिए, आइंदी क्या मेरे पास, वक़द मारस्तु कुल्ल ख़फ़िय्यतिन, इस हाल में के, देखिए यह हाल है, वक़द मारस्त ये जुमला जो है ना हाल है, गौर कीजिएगा। वक़द मारस्तु कुल्ल ख़फ़िय्यतिन, जबकि मारसा में से क्या होता है? मारसा में से होता है ज़ावला युज़ाविलु मुज़ामलतन, मतलब कामा कामा यक़ूमु भी, मैंने कर लिया है कुल्ल ख़फ़िय्यतिन। ख़फ़िया में से क्या होता है? ख़फ़िय्यतुन की जमा होती है ख़फ़ाया, मतलब है कि मुअज़लातुन दक़ीक़तुन, यानी कि वो सारी मुसीबतें, वो सारी उर्दू में आप इतना समझिए, ख़फ़ियतुन का मतलब है सख्त घड़ी, ठीक है, सख्त घड़ी समझने के लिए बोल रहा हूँ। और अरबी में ख़फ़ियतुन का माना करेंगे मुअज़लतुन दक़ीक़तुन। मुअज़ला में से यानी कि मुश्किलतुन, इसी को दूसरे वर्ड में बोलेंगे मुश्किलतुन दक़ीक़तुन, यानी कि सख्त घड़ी। तो क्या है, क्या मेरे पास, जबकि मैंने तमाम सख्त घड़ी को, सख्त काम को मैंने तजुर्बा किया है,
युसद्दक़ु वाशिन, सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक का मतलब होता है किसी के बारे में सच मतलब किसी को सच साबित कर दे, सच साबित करने के लिए वो एहसास रखना, तस्दीक करना जिसको बोलते हैं। युसद्दक़ु वाशिन, वाशिन मीन से क्या होता है? देखिए वशा यशी बिही का मतलब होता है कि चुगली करना, यानी कि कोई बात इधर की उधर लगाना, ये इसमें फ़ाइल है। युसद्दक़ु वाशिन, क्या चुगलखोर की मेरे पास तस्दीक की जाएगी। और युखय्यबु साइल, खय्यबा युखय्यबु तख़यीर का मतलब होता है नाकाम करना, या किसी मांगने वाले को नाकाम किया जाएगा, यानी कि मांगने वाले को मैं अपने दर से नाकाम करके भेजूं, यानी कि खाली हाथ भेजूं, क्या ऐसा हो सकता है? अब शेर का तर्जुमा देखिए, आइंदी वक़द मारस्तु कुल्ल खफ़िय्यतिन युसद्दक़ु वाशिन और युखय्यबु साइलु, क्या मेरे पास जबकि मैंने तमाम मुश्किल घड़ी का मैंने तजुर्बा किया है, किसी चुगलखोर की तस्दीक की जाएगी या किसी मांगने वाले को नाकाम किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि मैंने तमाम सख्त घड़ी का जब मैंने वो तजुर्बा कर लिया है, मैं तमाम दुनिया की सारी चीज़ें देख ली है, तो इसकी वजह से कोई चुगलखोर आएगा तो मैं उसकी तस्दीक नहीं करूँगा, मैं उसको सच नहीं समझूंगा। और कोई मांगने वाले आएगा तो मैं उसको अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो ये पूरा मतलब हुआ। तो अब चलिए, शेर क्लियर हुआ? पहले ये बताएं। जी सर। चलिए अब बताएं आप लोग, इसका ऑप्शन खुद ही बताएं। माज़ा यक़्सिदु शायर बिल बैति तालिब, शायर नीचे दिए हुए शेर से क्या मुराद लेते हैं? नंबर 1, ला युमकिनु अन युसद्दिक़ अन्नम्माम अल्लज़ी यसरिक़ु यसअा लित्तफ़रीक़ति बैन अन्नास। वाशिन का क्या मतलब होता है? वाशिन को बोलते हैं नम्मामुन, ठीक है, वाशिन को बोलते हैं नम्मामुन, चुगलखोर। मुमकिन नहीं है कि मैं तस्दीक करूं उस नम्माम की, चुगलखोर की, अल्लज़ी यसअा जो कि कोशिश करता हो, लित्तफ़रीक़ति बैन अन्नास लोगों के बीच फूट डालने के लिए। नंबर 2 है, ला युमकिनु अन यरजिअ अस्साइलु मिन लदय्य खाइबन, मुमकिन नहीं है कि कोई मांगने वाला मेरे पास से नाकाम लौटे। ऑप्शन नंबर 4, लक़द तजावज़तु कुल्ल नौइन मिनल मुअज़्ज़लात, हर तरह की मुसीबतों से मैं आगे बढ़ चुका हूँ, एक्सिट कर चुका हूँ, यानी उससे गुजर चुका हूँ। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? माज़ा यक़्सिदु शायर बिल बैति तालिब। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि शायर ये तीनों बातें मुराद लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 है, कलिमतु वाशिन अय्यु नौ मिनल अस्मा मिनल अनवाइल मुश्तक्का, अय्यु नौ मिनल अस्माइल मुश्तक्का फिल बैति ताली, अस्माए मुश्तक्का में से कौन सी किस्म है कलिमतु वाशिन? बताएं। आइंदी वक़द मारस्तु, इसमें फाइल। जी वेरी गुड, इसमें फाइल है वाशिन। मा माना वाशिन, वाशिन का क्या माना होता है? अल-कादिब, नंबर 1। नंबर 2, अन्नम्माम अल्लज़ी यसअा लित्तफ़रीक़ति बैन अन्नास। नंबर 3, अर्रजुल मुतशब्बिह बिल मुतलाबिब। ऑप्शन 2। जी बिल्कुल, ऑप्शन 2। वाशिन का मतलब होता है अन्नम्माम, कि वो चुगलखोर जो कि कोशिश करता है लोगों के बीच फूट डालने के लिए। 16 बताएं कि लिमादा नुसिब तशर्रुफन, तशर्रुफन को क्यों नस्ब दिया गया है नीचे दिए हुए शेर में? चलिए पहले बताएं क्यों नस्ब दिया गया, फिर इसका तर्जुमा करेंगे। युनाफिसु यौमी फी अमसी तशर्रुफन व तहसिदु असहारी अलय्यन असाइलु। तो बताएं तशर्रुफन को क्यों मंसूब दिया गया है? मफ़ूल लहू, मफ़ूल लहू के लिए। मफ़ूल लहू है जी। मफ़ूल लहू कैसे है? चलिए शेर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। शेर, इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर का सीधा सा मतलब आप ये समझे कि शायर ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम ग्रेट, मैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हूँ। शायर ये कहते हैं और इतना अजीम हूँ, इतना ग्रेट हूँ कि मुझ पे जो है दिन और रात जो है ना, दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हैं कि मैं हो जाऊं। दिन ये चाहता है मैं उसका हो जाऊं, रात ये चाहती है कि मैं उसका हो जाऊं। और ऐसे ही शहर का टाइम जो होता है वो शाम के टाइम पे हसद करने लगा है, क्योंकि शाम ये चाहता है कि मैं उसका हो जाऊं और सुबह का टाइम ये चाहता है मैं उसका हो जाऊं। मतलब मैं बहुत ही ग्रेट हूँ।
तो शेर का मतलब ये हुआ। अब शेर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। युनाफिसु, नाफसा युनाफिसु का मतलब क्या होता है? तबारा या तबारा तबारियन, मतलब ये है कंपटीशन करना एक दूसरे से। युनाफिसु यौमी, मेरा दिन वो मुकाबला करता है, फिया मेरे बारे में, अमसी मेरे शाम से, मेरी शाम से, तशर्रुफन इज्जत हासिल करने के लिए। मेरा दिन मेरे बारे में कंपटीशन करता है मेरी शाम से इज्जत हासिल करने के लिए। वो तहसिदु असहारी अलैयल असाइल, असहार में से पता है कि मतलब होता है कि सुबह का टाइम, असाइल का मतलब होता है बिल्कुल मगरिब का टाइम, मगरिब से कुछ पहले का टाइम। वो तहसिदु असहारी अलैयल असाइलु, और शाम का टाइम, और शाम का टाइम मेरे बारे में हसद करता है असहारी, मेरे सुबह के टाइम से। असल बात यह है कि हर कोई क्या चाहता है? तशर्रुफन, हर कोई चाहता है इज्जत, तशर्रुफन इज्जत चाहता है, इज्जत हासिल करने के लिए। क्योंकि मैं इतना ग्रेट हूँ, अजीम हूँ कि मैं जिसका हो जाऊँ वो उसके लिए इज्जत का सामान हूँ, मैं उसके लिए, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। पूरा शेर का मतलब ये हुआ। अब शेर का तर्जुमा एक बार और देख लें। युनाफिसु यौमी फी अमसी तशर्रुफन, कि मेरा दिन मेरे बारे में। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, एक गौर करने की चीज़ है जो मुझे अभी समझ में आया। यहाँ पहला जो शेर है यौमी, तो यौमी को आप वो बनाए, फाइल बनाए, ठीक है। अमसी को मफूल भी बनाए, ठीक है। और जो दूसरा शेर है, दूसरे शेर में तहसिदु अशहारी अलैयल असाइलु, असहारी को मफूल भी बनाए, असाइल को फाइल बनाए, तो फिर माना क्लियर होगा। तो अब देखिए, युनाफिसु यौमी फिया अमसी तशर्रुफन, कि मेरा दिन मेरे बारे में, मेरी शाम से कंपटीशन करता है, मुकाबला करता है, तशर्रुफन इज्जत हासिल करने के लिए। ये दिन कंपटीशन कर रहा है शाम से, एक यहाँ पे। व तहसिदु असहारी अलैयल असाइलु, और यहाँ पे क्या है? मैं और शाम ये हसद करते हैं मेरे बारे में मेरी सुबह से। तो असाइल का क्या मतलब होता है? मतलब होता है मगरिब से कुछ पहले का टाइम, शाम जिसको बोलते हैं। तो ये बताएं, शेर क्लियर हुआ? जी सर। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो अब ये देखिए, तशर्रुफन इज्जत हासिल करने के लिए, मफूल lahu किसको बोलते हैं? वो पता है, ले अजली, की वजह से जो काम होता है। सवाल नंबर 17 है, मा मुफरद असाइल, असाइल का मुफरद क्या है? युनाफिसु यौमी फी अमसी तशर्रुफन व तहसिदु असहारी अलैयल असाइल। तो बताए, तो असाइल जो वर्ड आया है इसका मुफरद क्या है? असालतुन, असीलुन, असलुन, उसूलुन। ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन नंबर 4। नहीं, असीलुन की जमा होती है असाइल, असीलुन की जमा होता है असाइल, जिसको बोलते हैं ये अलवक्तु बैनल असरी वल मगरिब, असर से मगरिब के दरमियान जो वक्त होता है उसी को बोलते हैं असाइल। उसकी वाहिद है, मुफरद है असीलुन। इसी को बोल सकते हैं अलवक्तु क़ब्ल अल गुरूब, अलवक्तु क़ुबैल अल गुरूब बोलेंगे कि गुरूब होने से पहले का जो टाइम होता है, ठीक पहले का, तो उसी को बोलते हैं असीलुन की जमा असाइल। हाँ चलिए, सवाल नंबर 18 है, मा माना असाइल फिल बैत ताली, असाइल का क्या माना है? युनाफिसु यौमी फी अमसी तशर्रुफन व तहसिदु असहारी अलैयल असाइल, क्या माना है बताएं? ऑप्शन थर्ड। नंबर 3। जी, असाइल का माना वक्तुन बैनल असर वल मगरिब भी है और वक्तुन क़ब्ल अल गुरूब भी है, दोनों हैं।